very impactful for all of us. Cadets, I, Cadet Saisha, am thrilled to tell you that the speaker who is among us to address the cadets is a very respectable and influential speaker. I, Cadet Saisha, feel blessed to be a part of this camp where I am getting the opportunity to hear and meet great people like you, sir. I am really fortunate to introduce our today's most dynamic, energetic, and holistic personality whose achievements are memorable and a great source of inspiration for all the cadets. With all our energy and enthusiasm, please do welcome our versatile speaker, Brigadier Anjan Kumar Basumatari, Commander 29 RT, Brigade Mamoon Pathankot. Sir, we are really fortunate to have you with us today. Your presence truly elevates this occasion. We are incredibly privileged for this opportunity to hear from you, sir. To give a little more briefing about Brigadier A.K. Basumatari, Commander 29th RT Brigade Mamoon Pathankot, I Cadet Mahi is going to tell you more about sir's achievements, education, training, service and expertise. Education and training. Brigadier A.K. Basumatari is a serving officer of the Indian Army. He did his schooling from his village school in Assam and then Sainik School Golpara, Assam, from where he passed out as overall best cadet and school captain in 1995. He had won the National Talent Scholarship in class 10th and was selected for NDA before his class 12th board examinations. He joined NDA in 1995 with an All India rank of 104 and graduated in 1998 with an overall merit of 12th. In NDA, he won a gold medal in athletics, best in bayonet, fighting of his course, bayonet pin for medal and athletics, and best in RV service subjects and silver torch for academic excellence. He then graduated from IMA Dehradun in 1999 as a battalion cadet adjutant and overall merit of again 12th out of 547 and first out of officers commissioned to artillery on 12th June 1999. Service profile. He has served extensively along the northern and western border, including Siachen Glacier and the northeast, where he participated in active operations and commanded an artillery unit in active operations on the line of control during and post the Uri incident. Under his able command, his unit was awarded the Northern Command GOC in Sea Unit Citation in 2017. He served in UN mission in Sudan. He has the unique distinction of serving as an instructor over 4 tenures at OTA Chennai, at the prestigious Army War College, Mhao, and twice at School of Artillery, Devlali. More than 5,000 Survey Army officers have been trained by him. For his operational achievements in the Siachen Glacier as a lieutenant, he was awarded as the Chief of Army's Commendation Card. He has also been awarded the Eastern Command GOC in Sea Commendation Card on 15th August 24 for his outstanding performance. Academic excellence. During his professional career, the officer has done MSc in Weapon Technology, first class with distinction, and MSc in Defense Technology, first class with distinction, from University of Pune, and MPhil in Defense and Strategic Studies from Punjab University. Hobbies. The officer is an avid long-distance runner, has participated in many marathon events, and runs 5 kilometers every day, 10, 15, 21 kilometers every Sunday. He loves music and has been trying to learn guitar for the last few years. He has been delivering motivational talks for students for over 15 years. So far, he has delivered talks at many schools and colleges, including Central University Tezpur, Sophia Women's College Ajmer, Siliguri Institute of Technology, Don Bosco Siliguri, DPS Siliguri, and KV Sukna, KV Mamoon, NCC Cadets of Pathankot, etc. Cadets, the most important topic sir is going to deliver is you can be what you want to be. I would like to request Director Oshin Mahajan ma'am and Principal ma'am Subramani from Pratawal School, Pathankot to escort Brigadier A.K. Basumatari on stage and request
Cadet Preeti and Cadet Deepa to extend a green welcome to Brigadier A.K. Basumatari, Commander 29 Army Brigade. Without further ado, let's give a warm welcome to Brigadier A.K. Basumatari as he has to take the stage. Sir, the stage is yours. NCC clap, ready up. Anybody who wants to go home? Can you hear me at the back? Should I go back home? Chalo, it's okay, good. Right. I wanted to start जैसे मूवी का ट्रेलर होता है ना, अच्छा देखो हेलो चेक। अच्छा मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं, समझ में आ रहा है? तो मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हिंदी नहीं अच्छा आता है, तो मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है और पंजाबी मैनू आउंडी नहीं, व्हाट यू कॉल इट, राइट? सो मैं तीनों को मिक्स नहीं, पंजाबी तो मिक्स नहीं कर सकता हूं मैं। सो हिंदी इंग्लिश में कोशिश करूंगा मिक्स करने के लिए, बट वो कहते हैं कि भावनाओं को समझो। सो अगर आप जो मैं बोलना कोशिश कर रहा हूं समझने कोशिश करोगे, और मुझे पता है कुछ लड़के वहां पीछे बेचारे फंसे हुए, बोला कहाँ कब खत्म होगा ये कैंप और कब हम छूट जाएं और घर जाके फेसबुक और इंस्टाग्राम देखने को मिल जाए, करेक्ट? अभी मोबाइल जमा कर रखा है ना, हाँ वही बेस्ट है, दैट इज द बेस्ट। ठीक है, रेडी है? ओके, ये वीडियो प्ले करना। चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः इदं ब्राह्मम् इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि। बस एस्केप, बस इतना ही झलक था। ठीक है, ये उनके लिए है कि कुछ इंटरेस्ट जग जाए। अगर ये अच्छा लगा तो मैं जो आगे बोलने वाला हूं अच्छा लगेगा, और जिनको अच्छा नहीं लगा तो फिर यू कैन स्लीप, आप सो सकते हैं, डोंट वरी। क्योंकि मुझे पता है 200 बच्चों ने फॉर्म भरा है, उसमें से कुछ बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, फौजी से कोई ताल्लुकात नहीं है। फौज हम मारते हैं, आप उसको बचाते हो। कुछ लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं है। और आई एम वेरी हैप्पी, एक है जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनको तो फौज से बिल्कुल ही ताल्लुकात नहीं है, करेक्ट? सो बट देन अभी सीओ साहब ने आपको बिठा दिया है और स्कूल के प्रिंसिपल डायरेक्टर ने बिठा दिया, आपको सुनना पड़ेगा। ओके, प्रेजेंटेशन एस्केप, नीचे एक प्रेजेंटेशन, उसको ओपन करना, नीचे प्रेजेंटेशन ओपन करना, नीचे राइट में, नीचे प्रेजेंटेशन नीचे ओपन है ना, इसको क्लिक वो कर दो, स्लाइड शो कर दो, प्रेजेंटेशन कर दो। नहीं आता है? ओके, सभी लोग बैठ सकते हैं आराम से। देखो, पंगा लेना है तो अच्छे से पंगा लो जिंदगी में। अभी मुझे बुला के यहां पे पंगा ले लिया है आप लोगों ने, समझ रहे हो? तो अभी तो झेलना पड़ेगा 1 घंटा, ठीक है? ओके, एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू थैंक द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल प्रताप वर्ल्ड स्कूल and the CO NCC battalion for having invited me and giving me this opportunity to connect with all of you. This is a personal opportunity for me
दैट गिव्स मी एन इंसाइट टू व्हाट इज गोइंग टू द फ्यूचर और जनरेशन ऑफ अवर कंट्री। और मुझे भी एक मौका मिलता है कि आप लोगों का आगे का जो कैरियर है उसमें अगर मैं कुछ रोशनी डाल सकूं तो वो आपके लिए अगर फ़ायदेमंद हो तो इट्स गुड। अभी पीछे वालों को आई थिंक दे कैन नॉट हियर मच, राइट? ओके, एनीवे, सो मैं पहले ही बोलना चाहता हूं कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूं कैरियर काउंसलिंग में। यस, मैं प्रोफेशनल हूं मेरा जॉब में, मेरा कैरियर में। हावेवर जो भी मैंने एक्सपीरियंस तजुर्बा देखा है उसी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, राइट? आपके लिए बेस्ट आपका है जो प्रिंसिपल, आपका डायरेक्टर, आपका फैकल्टी, आपके टीचर्स और जो एनसीसी के हैं, आपके जो इंस्ट्रक्टर्स, दे आर द बेस्ट पीपल टू गाइड यू व्हाट टू डू इन लाइफ, एंड ऑफ कोर्स योर पेरेंट्स। हावेवर पर्सनल एक्सपीरियंस, क्लास 11, 12, कॉलेज लाइफ इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट। समझ में नहीं आता ये जिंदगी है क्या, जिंदगी से करूं क्या। अच्छा हो जाए तो बोलते सब कुछ ठीक हुआ, नहीं होता तो बोलते कि जिंदगी मेरे को कहां फंसा दिया। सो मैं जो बोलूंगा उससे शायद यू माइट बी एबल टू टेक ए बेटर डिसीजन, बिकॉज मैंने देखा है आईपीएस ऑफिसर, आप लोग को पता है इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, कंट्री के टॉप बॉयज गर्ल्स उसमें जाते हैं। मैंने देखा है आईपीएस ऑफिसर विद इन 6 months ऑफ सर्विस आर्मी के साथ पेट्रोलिंग में आती है, और जब भी पेट्रोलिंग बोलो तो बेचारी गाड़ी में छुप जाती है। तो ना आज तुमने आईपीएस ज्वाइन क्यों किया? कहती है मुझे आईएएस बनना था, मेरिट कम हो गया, मैं आईपीएस में फंस गई। तो मैंने कहा अगले 30 साल का जिंदगी कैसे जियोगे? मतलब आपने वो काम ले लिया जो आपको करने को पसंद ही नहीं है। तो 3 Idiots मूवी सभी ने देखा होगा, फोटोग्राफर, करेक्ट? हाँ, मैं छुट्टी में भी जाता हूं तो ये लेक्चर पिछले बार मैं तेजपुर यूनिवर्सिटी के बीटेक स्टूडेंट्स को ले रहा था। उस शाम को मेरा उनका जनरल जीएस का कॉल आया कि सर आज 10 बच्चों ने पेरेंट्स को बोल दिया कि मुझे ये नहीं करना है, सर ने बोला है कि नहीं करना है जबरदस्ती। ठीक है, बट आप लोगों ने नहीं करना है सर, ठीक है? ओके, मैं कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे कि एक मेरा खुद का सोच विचार है, ठीक है? टाइम टू शो व्हाट यू हैव गॉट। ये 2 पिक्चर है कारगिल लड़ाई के, आप लोग शायद पैदा भी नहीं हुए थे कारगिल लड़ाई के टाइम पे, और उस टाइम में मैं कमीशन हुआ था, बल्कि मेन लड़ाई में मुझे हिस्सा नहीं मिला। इनफैक्ट जिस दिन ऊपर टोलोलिंग में लड़ाई हो रहा था उसी दिन मैं आईएमए से पास आउट हो रहा था। उसके बाद मैं यूनिट ज्वाइन किया तो मुझे तुरंत वेस्टर्न बॉर्डर में चला गया था कि अगर लड़ाई कश्मीर से नीचे आके पंजाब बॉर्डर में राजस्थान में आ जाते हैं तो हमें लड़ाई करना पड़ता। बट देन कारगिल के बारे में पता है, तो उस लड़ाई में मेरा एक इंस्ट्रक्टर गया था, तो उस टाइम का मैं एक कहानी बताऊंगा। तो वो लड़ाई से कि अभी वो साहब जो है जम्मू में है, एडीजी एनसीसी जनरल बेवली, ये उनका कहानी है। कैप्टन बेवली दैट टाइम वापस आके हमें ये स्टोरी सुनाया था। आर्टिलरी का हूं मैं, आर्टिलरी में अलग अलग टाइप का गोले होते हैं, बुलेट नहीं होते, हमारे बड़े बड़े गोले होते हैं जो कि हम 20, 30, 40 किलोमीटर दूर से फेंक सकते हैं। और उसी में आप लोगों ने बोफोर्स गन का नाम सुना होगा। तो बोफोर्स गन में एक स्पेशल एमुनेशन है जो कि हवा में फट जाते हैं और वो एक गोले के जगह छोटे छोटे बॉम्बलेट्स बन के जमीन पे आते हैं, और जहां टारगेट आते हैं वो ज्यादा इलाका कवर करके उसको बर्बाद करते हैं। तो उस टाइम इसको बोलते हैं कार्गो शेल। तो हमने कैप्चर करने वाले पहाड़ों में बहुत सारा कार्गो शेल फायरिंग किया था। जब अगर वो कोई टारगेट मिला फट जाता है, नहीं मिलता है तो जमीन पे पड़ा रहता है, बाद में कोई दुश्मन उसके ऊपर पांव रखता है तो फट जाता है एज ए माइन। तो वो पहाड़ हमने कैप्चर किया, खुद ही हमने फायर किया। जब कैप्चर किया बहुत सारे बॉम्बलेट गिरे हुए थे, तो वो बटालियन था एक गोरखा बटालियन, और सीओ साहब परेशान हो गए कि अपने लड़के इसके ऊपर पांव रखेंगे, छू लेंगे तो ये फट सकता है। तो उन्होंने बेवली साहब को बताया। लकीली बेवली साहब एक सरदार जी है, लेकिन वो ऐसे एक रेजिमेंट में जिसमें सारे ट्रूप्स प्योर गोरखा है और उनको प्योर गोरखाली बोलने को आता था। तो साहब ने उन पहाड़ों में, जैसे हवा अभी चल रहा है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वहीं पहाड़ के नीचे अपने पूरे बटालियन को इकट्ठे करके समझाया गोरखाली में। कोई गोरखाली है यहाँ पे? नेपाली बोलने वाला है कोई? नहीं है, कोई बात नहीं, सब पंजाबी वाला है। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा गोरखाली आता है, ठीक है? तो उन्होंने गोरखाली में अच्छे से समझाया, कोई पेपर पेन बोर्ड कुछ नहीं है, ऐसे समझाया। गुरुजी एस्टो है, बड़ा ऊंचा है, बढ़िया से पूरा समझाया। उसको नहीं छूना है,
ऐसा होगा, रिबन होगा, उसमें नहीं चुना है। और गोरखा सोल्जर आपको पता है, वो सावधान में खड़ा है, जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर बोल रहे। आधा घंटा हो गया, साहब को समझ में आया नहीं। तो फाइनली उसने सामने वाला गोरखा को पूछा, अरे गोरखे तिमले बनने को है ना? तो उसने दोनों हाथ में अपना जेब डाला, 3 यहां से निकाला, 3 यहां से निकाला। साहब तो इसके बारे में बनने चौके, तो आप इसके बारे में बोल रहे हो क्या? वो अपने जेब में 6 बॉम्बलेट लेके घूम रहा था। तो सामने बोला फेंक फेंक फेंक, उसको फेंका, उसके बाद फेंका। मैं इसमें क्यों बोलता हूं, अगर वो गोरखा ने टाइम पे वो बॉम्बलेट निकल के नहीं फेंकता तो उसको अपने जेब में फट जाते। तो जिंदगी में आपके सबके जेब में बॉम्बलेट है, अगर टाइम पे उन बॉम्बलेट को निकल के नहीं फेंकोगे तो आपके पैंट के अंदर फटेगा। चाहे वो एग्जाम का 3 घंटे में अगर पेपर का करेक्ट उसी टाइम नहीं लिखोगे तो आप घर में जाके उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। सिमिलरली जिंदगी का ये क्लास 12 और कॉलेज लाइफ मेन टाइम है। उस टाइम पे अगर आप पूरा दिमाग को नहीं लगाते हो, पूरे जिंदगी को वो बॉम्बलेट को आप घर पे रखोगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो देयरफॉर ये टाइम जो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम में बर्बाद कर रहे हैं, ये टाइम को नहीं करके अपने टाइम पे निकालो बॉम्बलेट, नहीं तो जेब में बॉम्बलेट फटेगा। समझ में आया सबको? हाँ, तो मेरा ये पहला पॉइंट है आप लोगों को, जिंदगी का 9 के बाद 10, 11, 12 कॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल फेज है। उसके बाद पूरे जिंदगी आपने उसी को करना है। अगर वो आईपीएस ऑफिसर के बारे में सोचो, उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, अभी पूरा जिंदगी वो ऐसे ही उसको घिस पिस करके आईपीएस, बिकॉज पुलिस जॉब अलग है, आईएएस जॉब अलग है, ठीक है? दैट इज वन। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग सभी ना कुछ कर रखे हो। आप लोगों का गूगल फॉर्म से मैंने देखा है, कुछ लोग बिल्कुल क्लियर है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये करना है, लेकिन 38% लोग हैं जो पक्का नहीं है मुझे करना क्या है जिंदगी में, ठीक है? दूसरा, आप लोग क्योंकि एनसीसी कैडेट्स हो, 80% लोग बोलते हैं कि मैं फौजी बनना चाहता हूं, ऑफिसर, अग्निवीर जो भी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए वैकेंसी बहुत लिमिटेड है, चाहे वो ऑफिसर में चाहे वो अग्निवीर में। पूरे देश में 140 करोड़ आबादी है। 140 करोड़ में मैंने कैलकुलेट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ओनली 47 लाख लोग हैं, स्टेट गवर्नमेंट पूरे सबको मिला के मुश्किल से 1 करोड़ लोग गवर्नमेंट जॉब में है आउट ऑफ 142 करोड़। बाकी लोग प्राइवेट सेक्टर में है। इसका मतलब नहीं अच्छा नहीं है, सभी लोग अच्छा। इसका मतलब नहीं कि वो देश के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टर मैम यहाँ पे देश के लिए इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ शायद, बच्चों के जिंदगी को बना रहे हैं। साहब इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एनसीसी कितने कैडेटों का जिंदगी बना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आपका एक बैकअप प्लान होना जरूरी है। पहली बात, अपना इरादा को पक्का करो, मुझे जिंदगी में ये करना है, और अगर ये करना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे क्या, पूरा जी जान लगा दो उसके ऊपर। लेकिन अगर वो नहीं हुआ, देन व्हाट शुड आई डू? दूसरी बात, मैंने जो सिलेक्ट किया है, हो सकता है मैंने अपने भाई बहन को, दोस्त को देख के बोला है मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन क्या पता है आपको एक इंजीनियर का लाइफ कैसा है? क्या आपको पता है एक इसका लाइफ कैसा है? वो बहुत जानने का जरूरत है। सो मेरा जो लेक्चर का आपको नहीं समझ में आ रहा है, मेरा यही पॉइंट है कि मैं सोचता हूं, मेरा खुद का सोच विचार, बैक टू 3 इडियट्स, अगर मुझे जिंदगी में वो काम मिल जाए जिससे मुझे कमाई भी हो और जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी हो, तो मैं सबसे खुश रहूंगा, ठीक है? अगर मुझे, और आप लोगों के टाइम पे कुछ भी करके पैसा कमा सकता है। फोटोग्राफर है, बी द बेस्ट फोटोग्राफर। अगर आप म्यूजिक वाले हो, बी द बेस्ट म्यूजिक। जो भी करके आप अपने जिंदगी में अच्छा कमाई कर सकते हो। पहले थोड़ा सा मुश्किल था, इतना इंटरेस्ट, इतना ऑप्शंस नहीं होते थे। सो देयरफॉर सबसे इंपॉर्टेंट है सोचना है मुझे करना क्या है जिंदगी में और मेरे में क्या काबिलियत है, ठीक है? सो ये आप लोगों का सर्वे जो मैंने लिया था, कि मैंने पूछा था मैं किस बारे में बात करूं, तो आप लोगों ने बोला 35% ने कैरियर ऑप्शंस के बारे में, एंड 34% ने बोला कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड 29% हाउ टू जॉइन आर्म फोर्सेस। एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, ये टीचर्स और फैकल्टी को और एनसीसी को जान के पता अच्छा लगेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बच्चे परेशान नहीं है। दे डोंट वांट मी टू, ओनली 17% वांट मी टू टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट।
इसका मतलब आप लोग स्ट्रेस में नहीं हो, सही है? आप लोग स्ट्रेस में नहीं हो ना? अच्छा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल। अगर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे या कोटा में जाके पूछूं कोचिंग वाले बच्चों, तो उनका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। 25 सुसाइड्स इन 3 months, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो आई एम हैप्पी आप लोग स्ट्रेस में नहीं हो, छाती ऊपर करके रहो जिंदगी, लेकिन जो सामने है उसको लेके चले जाओ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट, मेरा लेक्चर 2 पार्ट में है। पहला पार्ट है गोल सेटिंग, कि जिंदगी में मेरे को एम कैसे, क्या डिसाइड करना है, ठीक है? एंड हाउ डू आई डिसाइड। पीछे वाले बच्चे, वो अभी एनडी में होता ना, कोई खालसा है जो चश्मा भी पहनता है, वो लास्ट में, उसके बगल में कोई नहीं बैठता है, क्योंकि या दैट कैडेट नेक्स्ट टू दैट खालसा विद स्पेक्स, गेट अप स्टार्ट रोलिंग, ऐसे पॉइंटेड आउट हो जाता है। हाँ सरदार, वो चश्मा वाला छोटू, सुनाई दे रहा है? नहीं, समझ में आ रहा है? आई थिंक नहीं आ रहा है। एनीवे, लेट मी सी इफ आई कैन गो देयर। कब तक मिलेगा? एक कूलर के वजह से नहीं। सारे लोग सो रहे हैं, पक्का नहीं सो रहे हो? प्लीज प्लीज बैठिए मैम, प्लीज बैठिए। ओके, अभी सुनाई दे रहा है? नाउ बेटर आई थिंक, है ना? गुड। सो मैं ये कह रहा था कि देखो, हाउ टू चूज एन ऑप्शन, जिंदगी में करना क्या है, हाउ डू यू डिसाइड। बहुत ऑप्शंस है, मैं इंजीनियर बनूं, एमबीए बनूं, डॉक्टर बनूं, फौजी बनूं, तो सो मेनी ऑप्शंस, हाउ डू यू डिसाइड। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। देखो, अगर आप गूगल करोगे जेड ऑफ कैरियर काउंसलिंग, आप फॉइल में देखिए, इतने सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आप फॉइल में देखो, फर्स्ट चॉइस आपको मिलेगा एक वर्ड, अकाउंटेंसी, एक्चुअरियल साइंस। एक्चुअरियल साइंस क्या होता है? एनीबॉडी? व्हाट इज एक्चुअरियल साइंस? इट इज द साइंस ऑफ इंश्योरेंस मैनेजमेंट। साइंस ऑफ इंश्योरेंस मैनेजमेंट। तो हम बोलते हैं ना, LIC करो, इंश्योरेंस करो, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। सो देयर इज अ A to Z ऑफ कैरियर ऑप्शंस। आप कुछ भी चूज कर सकते हो, ओके? लेकिन क्या फैक्टर है, क्या चूज करना चाहिए, हाउ टू डिसाइड योर एम इन लाइफ, ठीक है? एक मैं बताना चाहता हूं, ये जो मैं बताने वाला हूं, ये MBA स्टूडेंट्स को बताया जाता है। लेकिन जब मैंने जिंदगी में काफी अभी कुछ साल पहले सीखा, तो मुझे लगा मुझे ये पहले क्यों नहीं पता था। देयर वाज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट कॉल्ड अब्राहम मैस्लो। 1943 उन्होंने एक थ्योरी लिखा, द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, इन अ साइकोलॉजिकल रिव्यू मैगजीन। तो उन्होंने कहा, इसको बोलता है मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड्स। कॉलेज के बच्चे, आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, इसको कहते हैं मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड्स। ये क्या थ्योरी है? कहते हैं कि हमारा जो जरूरतें हैं उसको उन्होंने कैटेगराइज किया है। सबसे बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान। तो कहते हैं कोई भी लोग मोटिवेट होते हैं पहला रिक्वायरमेंट के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान को पाने के लिए। तो मेरे पास जो बिल्कुल नया जवान आता है, उसका रिक्वायरमेंट है रोटी, कपड़ा, मकान, उसको सोने को टाइम मिल जाए, रेस्ट मिल जाए, वो खुश रहता है, मोटिवेट रहता है। दैट इज द बेसिक नीड। लेकिन जैसे वो 6 साल 8 साल सर्विस वाला हो जाता है, फिर उसको सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान से नहीं, उसको इज्जत चाहिए। मैं कमांडर साहब का गार्ड हूं, मैं CO का स्ट्रिक ऑर्डरली हूं, मुझे ये आता है, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूं, मुझे ये काम आता है, तो उसको इज्जत मिलना शुरू हो जाता है। वो सेकेंड लेवल। तो उन्होंने इस तरफ से कहा है कि कोई भी लोग मोटिवेट होता है अपना अपना नीड्स मिलने पर। अगर मिले तो शायद वो मोटिवेट नहीं होगा। अगर बैंक का मैनेजर है, उनको नेक्स्ट प्रमोशन चाहिए, तब वो मोटिवेट होंगे, करेक्ट? तो फौज में मैं इसी को एम्प्लॉय करता हूं। तो जैसे नायक, हवलदार, JCO साहब बन जाए, फिर वो हायर ऑर्डर नीड में चले जाते हैं। सेल्फ एस्टीम, मुझे इज्जत चाहिए। जैसे मेरे सूबेदार साहब है, साहब को रोटी, कपड़ा, मकान मिस भी हो जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन साहब को सूबेदार होने का जो इज्जत है, दैट ही मस्ट गेट इट। अभी किसी ने नाम सुना होगा, ताज, मुंबई में अटैक हुआ था टेररिस्ट का। उसके बाद एक फौजी अफसर का नाम याद होगा, कौन है? मूवी भी बनाया उनके ऊपर। ताज शहीद हुए हैं, बेटर है, ओके, या बट सुनाई दे रहे हैं, ठीक है, I'll just come। किसी को नहीं पता है ताज होटल में एक शहीद हुआ था ऑफिसर, NSG कमांडो। किसी को नहीं पता? नॉट यू? हाँ, यू नो? हाँ, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, नाम सुना है बाकियों ने? मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, नाम सुना है?
सो गए सभी? मुझे तो लगता है सो गए। मैं चलूं? ओके। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, मैं क्या कह रहा था आपको, जो थ्योरी ऑफ नीड्स में कौन लोग होते हैं बिल्कुल आगे जाके अपने जान को बिल्कुल परवाह ना करके सामने अटैक पे जाता है, वो लोग हैं, उनका मोटिवेशन लेवल जो कि मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड्स में बहुत ऊपर लेवल पे काम करता है। उनको चाहिए इज्जत। संदीप उन्नीकृष्णन साहब का लास्ट सेंटेंस था, ऊपर तुम लोग मत आना, मैं जा रहा हूं, मैं संभालूंगा, ठीक है। उसके बाद वो जाके शहीद हो गए। और मैं इसको गर्व के साथ कहता हूं कि संदीप उन्नीकृष्णन साहब और मैं एनडीए में एक ही बेंच में बैठते थे, ठीक। तो सेकेंड पॉइंट मैं जो आपको बता रहा हूं, आपका नीड्स को समझना है। क्या आप ओनली रोटी कपड़ा मकान मिलने से खुश रहोगे? अगर जिंदगी में नहीं रहोगे तो आपको ऐसा प्रोफेशन चुनना होगा जिसमें आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा, कुछ और भी मिलेगा। टीचर बनिए, इज्जत मिलेगा। फौजी बनिए, पैसा एडिक्वेट मिलेगा, इज्जत बहुत मिलेगा। सिमिलरली एवरी प्रोफेशन हैज समथिंग। लेकिन अगर आपको सिर्फ पैसा चाहिए, शेयर मार्केट ट्रेडिंग, कौन था? शेयर मार्केट ट्रेडिंग करिए, बहुत पैसा कमाइए, BMW घर नहीं, लोग आपको इज्जत करेगा पैसे के वजह से। लेकिन ऐसे स्टेज में आके सिर्फ आपको बोलेगा कि इनके पास बहुत पैसा है, दैट्स ऑल। लेकिन टीचर है, कुछ नहीं है, एक छाता लेके रिटायरमेंट में जा रहा है, लेकिन लोग उनको भगवान मानते हैं, पांव छूते हैं। तो तालियां बजना चाहिए भाई। आपने आपको पूछो, जो यूएस में जाके, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यूएस में जाके कंपनी का सॉफ्टवेयर दिन रात बैठ के मेहनत बन के सर्वाइकल वो हो गया है, ऑपरेशन सर्जरी हो गया है बैठ बैठ के, गूगल याहू का एक साल में इतना कमाता है जो मैं पूरा जिंदगी में नहीं कमा रहा हूं। करोड़ों में यूएस में स्विमिंग पूल वाला घर खरीद लिया है। लेकिन जब वो इंडिया में आते हैं, क्या बोल सकता है वो? मेरे तरफ से वो सिर्फ अपना रोटी कपड़ा मकान, लोएस्ट लेवल ऑफ मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड्स में काम कर रहा है। ही इज जस्ट ए वर्कर, इज नॉट ए लीडर, इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीवे अदर देन सम मनी एंड टैक्सेस। सो मैं अपने दोस्तों को बोलता, तुम सिर्फ वर्कर हो, you should have become a teacher and contributed better. Anyway, with due respect, don't mind, this is my strong opinion, but then I'm not against them, but are you happy doing that? That is most important. So अपने दिल में हाथ रख के पूछो कि क्या करना है मुझे, इसके बनस्पत आप टीचर बनिए, कुछ भी बनिए, जहां पे इज्जत है, doesn't matter, but then जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं इसलिए करना है, but understand मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। ये सिर्फ मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्चुअली हो जाता है। लोग नहीं बोल सकता है कि मुझे परमवीर चक्र मिल जाएगा, वो हो जाते हैं, वो अपने अंदर होते हैं। एस्टीम, डेफिनेटली मुझे इज्जत, करेक्ट, डायरेक्टर ऑफ स्कूल, प्रिंसिपल मैम, दैट इज एस्टीम, ठीक है। नेक्स्ट, सो तो दो चीज बताया आपको, जेब से टाइम पे निकालना जरूरी है, क्या? अपना नॉलेज, अपना सोच विचार, मतलब करेक्ट टाइम पे डिसीजन लेना है नाउ इन लाइफ। दूसरा मैंने बताया आपको, अपने अंदर सोचो और सोचो मेरा नीड क्या है। जिंदगी में मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, इज्जत भी चाहिए, दोनों चाहिए, क्या चाहिए? अकॉर्डिंगली इट विल बिकम ए मेजर फैक्टर, मुझे क्या जॉब करना चाहिए। मैं जिस तरफ से बड़ा हुआ हूं, पिताजी सिखाया, इस जन्म में किसी से भी 1 रुपया ले लिया, अगला जन्म में मैं उसका नौकर बन जाऊंगा। तो इसीलिए पिताजी कोई भी घर में काम करने आते हैं, बाद में पैसा लेने नहीं आते हैं, वो पिताजी उसके गांव में घर ढूंढ के जाते हैं। बोलता पिताजी ये क्यों करते हो? बोलता बेटा हमारा विश्वास है इस जन्म में मैं उसका उधार लेकर रह गया, वो मर जाएगा, मैं मर जाऊं, तो अगले जन्म में मैं उसका नौकर मुझे नहीं बनना है। अगर मेरा ये सोच विचार है तो मैं क्या इंश्योरेंस एजेंट बन सकता था? इंश्योरेंस एजेंट जब आपको इंश्योरेंस सेल करने आता है, मुझे 40 साल बाद पता लगा है कि टर्म इंश्योरेंस बोल के कोई चीज होती है, जहां पे आपका लाइफ बहुत कम पैसा में 1 करोड़ का इंश्योरेंस हो सकता है, लेकिन उसमें एजेंट को कमीशन नहीं मिलता है, इसलिए इसके बारे में वो बोलता ही नहीं है। वो दूसरा आपको एंडोमेंट पॉलिसी बेचता है जिसमें उसको ज्यादा फायदा होता है। तो झूठ और कुछ नीचे छोटे छोटे अक्षर में लिखा होता है कि आपको कुछ हो जाता है तो परिवार को इतना करोड़ मिलेगा, इतना लाख मिलेगा, लेकिन नीचे छोटा होता है, अगर वो बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराया था तो नहीं मिलेगा, खत्म कहानी। तो मेरे जैसा आदमी इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकता था, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, बिकॉज मेरा परवरिश ऐसा है। सो थिंक ऑफ योर सेल्फ। मैं नहीं बोलूं सब लोग मेरे जैसा होना चाहिए, मैं एक तरफ से पुराने जमाने का आदमी हूं, ठीक है। बट अदर थिंग,
कोर वैल्यूज, कुछ कोर वैल्यूज जो निहायती वैल्यू जो हमें परिवार से मिलता है। क्या मेरा जॉब उन वैल्यूज को पनाह देके रखेगा या मुझे कॉम्प्रोमाइज करने को जबरदस्ती करेगा? जैसे मैंने बताया मेरा पिताजी का वैल्यू, तो ये एक प्रोफेशन है जिसमें मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा, एक पैसा एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना है। मेरा सीनियर को खुश करने का एक ही तरीका है, अपना काम को ठीक से करो, दैट्स ऑल। कुछ नहीं करना है, ना ही 5 स्टार होटल में ले जाके पार्टी खिलाना है, डिनर कराना है, कुछ नहीं करना है, मैंने अपना काम करना है बस, दैट्स इट। जो कोर वैल्यूज है, सच बोलना, बिल्कुल। इंडियन आर्मी का 8 कोर वैल्यूज है। मेरे बटालियन में जब मैं सीओ था, हर एक जवानों के लिए मैंने कैप बनाए, उसमें 8 तारे लगा दिया, सितारे बना दिया और सबको गिनवा दिया इसका मतलब क्या है। और वो कोर वैल्यूज है इंटीग्रिटी, अखंडता, ऑनर, ड्यूटी, रेस्पेक्ट, लॉयल्टी, करेज, सेल्फलेसनेस। ये 8 इंडियन आर्मी का कोर वैल्यूज है जिसके वजह से हमें इज्जत मिलती है। इस चीज को बरकरार रखना है, कोई ऐसा चीज ना करो जिसके वजह से आपका इसमें हानि हो, दैट्स इट। तो मेरे को जो कोई बोलते हैं कि सर मैं एसएसबी में कैसे क्लियर हो जाऊं, मैं कैसे पास करूंगा, फौज में कैसे, साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपका यही टेस्ट होता है कि आप में इनमें से कितना वैल्यूज है, कितने वैल्यूज आप में है और कितना वैल्यूज हम ट्रेनिंग करके आपको दे सकते। कुछ चीजें ट्रेनिंग से नहीं दे सकते हम, अब बढ़ा देंगे, लेकिन जो रेस्पेक्ट, ड्यूटी, लॉयल्टी, ये सब नहीं सिखा सकते। तो एसएसबी में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह होता है यही चेक करते हैं, ठीक है, यही चेक करते हैं। सो जो एसएसबी के लिए तैयार है अलग से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे पता है आज गर्मी है, सब कुछ है, लेकिन यही चीज है आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये फोटो लेफ्ट में दिखाई दे रहा होगा, इट इज रिलेटेड टू दैट मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड्स। गोवा गया था मैं, ये लेडी मिली गन्ने का जूस बेचते हुए, मैं जिससे भी मिलता हूं बातें करता हूं, तो उनसे बात करके पता लगा मेहनत करती है, महीने में 60,000 कमाती है, 60,000 कमाती है, बच्चों को पढ़ाई कराती है, लेकिन मेहनत से कमाती है। उनको मैं ज्यादा इज्जत करता हूं बनस्पत। जब मैं छुट्टी गया था, पिताजी का प्लॉट मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन करना है, तो क्लर्क बोलता है सर चाय पानी का खर्चा दो फाइल के नीचे से, उनके लिए मेरे को कोई इज्जत नहीं है। सो ऐसा कोई जॉब मत लेना जिससे आपको ये करना पड़े, इट्स बेटर टू डू दैट। तीसरा, राइट में एक फोटो देखिए, एक बुजुर्ग आदमी है, ये स्कूटर नया है, लेकिन जब मैं 20-25 साल पहले मिला था, उनके पास लैम्ब्राडोर पुराना स्कूटर था। ये माऊ का कुल्फी वाला है, गूगल करोगे तो मिल जाएगा। ये आदमी है कुल्फी बना के बेचता है, 20 साल पहले 10 रुपया पर प्लेट बेचता था, अभी 30 रुपया हो गया है, ओनली चेंज हुआ है। अभी इस बार मिला मैं, स्कूटर नया ले लिया है और आइस बॉक्स ले लिया है। तो मैंने, ठीक है, लेकिन इनके पीछे कहानी है। इनके दोनों बेटा, अच्छा, हर एक माओ में हमारा जो भी हम ट्रेनिंग करने जाते हैं, 2 बजे इसका कुल्फी वाला शुरू हो जाता है और हम सारे जाके खाते हैं। अभी मैं जब गया पता लगा इनके दोनों बेटे इंदौर के सबसे बड़ा इंडस्ट्री ओनर है, करोड़ों रुपया का मालिक है। मैंने उनको पूछा अंक कि बाबा अभी भी आप क्यों ऐसा कर रहे हो? कहता है साहब जिस काम से इनको बनाया है वो काम मैं कैसे छोड़ सकता हूं। तो मेरा इज्जत इनके लिए बहुत ज्यादा है। बनस्पत वो इंश्योरेंस एजेंट, बनस्पत वो क्लर्क जो मेरे से पैसा मांग रहा था, कुछ भी। दैट इज माई वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। हो सकता है आपका नहीं है, लेकिन प्रोफेशन, अपने कैरियर को जब चूज करते हो, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मेरा रोजी रोटी कमाने के लिए मुझे क्या गलत काम तो नहीं करना पड़ेगा, क्या ये मेरा जो कोर वैल्यू है फैमिली का मेरा सिखाया हुआ, क्या उनको मैंने गलत तो नहीं करना पड़ेगा, वो देख लेना एक जरूर। अगर वो करेगा, मेरा खुद का प्रिंसिपल सैनिक स्कूल, जिस दिन मैं एनडीए के लिए थ्रू हो गया, बहुत खुश हो गया। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मेरा बायोलॉजी में 96% मार्क्स थे क्लास 12 में। प्रैक्टिकल में मेरे टीचर ने 2 मार्क्स कम दिया, नहीं तो और मिलते। जिस दिन मैं सिलेक्ट हो गया, लेकिन वो प्रिंसिपल के वजह से मैं फौज में आ गया, लेफ्टिनेंट कर्नल जेबी शर्मा, ही इज नो मोर, उनके वजह से मैं आया। लेकिन जब मैंने सिलेक्ट डिसाइड कर लिया, एक दिन फिर वो खुद ही दुखी होकर बोला, कहते हैं अंजन आपने डिसाइड कर लिया, मैं खुश हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, 5 साल से कोई नहीं गया अपने स्कूल से, आप पहले होंगे, मैं स्कूल कैप्टन भी था, बट मुझे ये भी दुखी है कि हो सकता है फौज में जाके आप बदल जाओगे, क्योंकि आपका जो ये ओरिजिनलिटी है, जो आपका सच्चाई है, शायद फौज में बदल जाओगे। लेकिन सबसे बेस्ट है अभी वो, अब स्वर्ग में है। 26 साल हो गया,
नहीं बदला, सेम वैल्यूज लेके मैंने रखा है। और यही एक प्रोफेशन है जो कोई डिमांड नहीं करता है कि आपने बदलना है, क्योंकि जो मेरा वैल्यूज थे वो बिल्कुल यही थे, यही है। इसीलिए क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम पहले ही मैं एसएसबी क्लियर। क्यों? कोई सच नहीं, कोई झूठ बोलना ही नहीं है। पता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर लड़कियां, बॉयज, पता है मुझे इंटरव्यू एक ही क्वेश्चन पूछा था, मतलब मैं बिल्कुल क्लियर था। इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने एक ही पूछा, भाई आपका वीकनेस कुछ है क्या? मैंने बोला हाँ सर, मेरा लड़कियों के लिए वीकनेस है। कैन यू इमेजिन? इंटरव्यू में बोल रहा हूं मेरा लड़कियों के लिए वीकनेस है। बोलता है क्यों बता रहे हो ऐसा? मैंने बताया सर हम 4 भाई हैं घर में, कोई हमारा बहन नहीं है। स्कूल में मैं स्कूल कैप्टन हूं, बॉयज स्कूल है, सिर्फ 5-6 लड़कियां हैं, वो टीचर्स के और स्टाफ के। कुछ लड़के हैं इनको परेशान करते हैं और मैं इन लड़कियों को मैं प्रोटेक्शन करता हूं। तो कुछ बच्चे बोलता है कि ये लड़कियों को ज्यादा फेवरेटिज्म करता है। तो इसीलिए मैं अभी क्लास 12 का लड़का, मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लड़कियों के प्रति मेरा वीकनेस क्यों है। बट मेरे मन में वो इसलिए है क्योंकि मैं उनको प्रोटेक्शन करना चाहता हूं। सर हो सकता है मेरे घर में कोई बहन नहीं है, शायद इसलिए मैं लड़कियों को प्रोटेक्शन करने में विश्वास करता हूं। तो जो निगेटिव पॉइंट था वो भी मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट। और ये किसी ने मुझे कोई कोचिंग सेंटर ने सिखाया नहीं था, दिल से बोला, साहब ने दिल से सुना और बोला वेरी गुड बेटा। बिकॉज अगर हम अपने बहन को, माताजी को प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, देश को कैसे रक्षा करेंगे भाई? उस टाइम पे मुझे नहीं समझ में आया था। बट देन ये आप लोगों के लिए जो एसएसबी जाते हैं, छुपाना कुछ नहीं है। अगर कोचिंग सेंटर में जाके कुछ क्वेश्चन आंसर सीख के जाते हो, उनको 2 मिनट में पता लग जाता है कि ये कोचिंग सेंटर वाला लड़का है, और 2 मिनट में पता लग जाता है कि ये दिल से बोल रहा है। What we are looking for is few good men, जिसका ये and women आजकल, सॉरी, and जिसका ये कैरेक्टर्स है, ठीक है। और मेरा ख्वाब था भाई एक दिन बुलेट खरीदना है और भाई मेजर साहब बनना है। अभी ब्रिगेडियर बनना है, एवरीथिंग इज एम क्लास। बिकॉज अगेन जिंदगी में अगर मैं गोलगप्पे बेचता हूं, बाय द वे जो गोलगप्पे बेचना है हर शाम को 200 प्लेट, प्रॉफिट 10 रुपया पर प्लेट, हर दिन 2000 कमा रहा है, महीने में 60,000 वो लड़का भी कमा लेता है और सिर्फ शाम को 2 घंटे के लिए ठेला लगाता है। तो 60,000 कमाना इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट द पॉइंट इज, क्या गोलगप्पे बेच के आप जिंदगी में खुश हो? क्या आप में उतना ही काबिलियत है? सो देयरफॉर सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, खुद के लिए वही एम सेट करो जो अचीवेबल है। मैंने खुद के लिए मैंने मेजर साहब का एम सेट किया था। सो देयरफॉर आई एम ऑलवेज हैप्पी। अगर आप गोलगप्पे बेच के अंबानी बनने का ख्वाब देखते हो तो मरने तक आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। सो देयरफॉर सेट अचीवेबल गोल, ठीक है। किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉनिक में आपको इंटरेस्ट है, इंजीनियर बनने का ख्वाब मत देखो, 4 साल पढ़ाई करना पड़ेगा, जॉब ढूंढोगे बहुत टाइम लग जाएगा। पिताजी बुजुर्ग है, खेती नहीं कर पा रहे, बोलेगा खेती भी नहीं करता है, कमाई भी नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ITI करो क्लास 12 के बाद। ये फैन जो ITI वाला है वो असेंबल करेगा, रिपेयर करेगा। जो इंजीनियर है इसको मैन्युफैक्चर करेगा, डिजाइन किसने किया है। लेकिन जो PhD करेगा वो नया टेक्नोलॉजी बनाएगा। लेकिन ITI के लिए 2 साल में कमाई शुरू हो जाएगा, इंजीनियर बनोगे तो 4 साल में कमाई शुरू हो जाएगा। रिसर्च करोगे तो 10 साल रिसर्च के बाद नया टेक्नोलॉजी बनाओगे, लेकिन आपको 10 साल लग जाएगा। नाउ आपका कंडीशन क्या है घर में? मुझे 2 साल में कमाई करना है, 4 साल में करना है या 10 साल में, प्लस मेरा इंटेलिजेंस कितना है। तो ये सब कंडीशंस को देख के देन यू डिसाइड मुझे जिंदगी में करना क्या है। लेकिन अगर आप में काबिलियत है, जरूरी नहीं कि ITI बन के उसमें रह जाओ। न्यूज़पेपर बेच के भी हमारे देश में प्रेसिडेंट बना है, मिसाइल एक्सपर्ट बना है। सो अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन या किसी वजह से आपको ITI करके कमाई शुरू करना है, आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, बाद में इंजीनियरिंग कीजिए। मेरा एक हवलदार था, रिटायरमेंट जा रहा है 30 साल, उसका उम्र 40 साल, रिटायरमेंट से 1 साल पहले खड़ा हो गया। तकरीबन जो रिटायरमेंट जाने वाले होते हैं वो बोलते हैं साहब मेरे को रीसेटलमेंट कोर्स करा दो, कहीं सिक्योरिटी गार्ड लग जाऊंगा। वो बोलते हैं साहब मुझे 12वीं का क्लास 12 करना है ओपन स्कूल से। मैंने बोला लालचंद तुम्हें क्यों करना है क्लास 12? बोलता है क्या साहब मेरे पोते मेरे बेटे सारे कॉलेज जाते हैं और उन लोग मेरे पर हंसते हैं कि आप तो सिर्फ क्लास 10 भी पास नहीं हो। अभी मैंने पिछले साल क्लास 10 पास कर लिया, अभी मैं क्लास 12 करके ही रिटायर। दैट इज द स्पिरिट।
सो लालचन के लिए जो मेरा इज्जत है वो बहुत गुना है, बहुत गुना है। सो देयरफॉर अगर आपको ITI करके कमाई कुछ करना भी पड़े, आप में काबिलियत है उसको जारी रखिए। अग्निवीर होके मेरे पास लड़के आ रहा है लेकिन उसमें काबिलियत है, हम पहचान जाते हैं उसको, हम ऑफिसर बनने के लिए मौका देते हैं। आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री में फिर वो ऑफिसर बन के आते हैं। अभी बहुत सारे कर्नल जनरल साहब घूम रहे हैं जो ऐसे पहले जवान भर्ती हुए बाद में ऑफिसर बने हैं, क्योंकि उसका आर्थिक अवस्था ठीक नहीं था या इंडिया में नहीं हुआ, बट बाद में हो गया, काबिलियत था लड़का का। दैट इज अनदर फैक्टर। सेकेंड थिंग, अभी अगर मैंने इतना बता दिया फिर बोलोगे कि यार सब ये करूंगा तो पैसा बहुत कम मिलेगा। तो मेरा एक मन में यही क्वेश्चन था कि हाउ मच मनी वी नीड। तो कभी कभी न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ लोग करप्शन करते, ये करते वो, फिर मैं सोचने लगा कि मेरे को तो जिंदगी में महीने में 30,000 से ज़्यादा पैसा नहीं लगा, तो लोग 100 करोड़ क्यों बनाने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने ये भी देखा कि शायद रिटायरमेंट के बाद लोग मरने तक ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ऐसे करके मैंने कैलकुलेशन किया, मैंने कैलकुलेशन करके ये एनालाइज किया है, कोई भी अगर 30,000 से भी शुरू करता है कमाई करना और हर साल 3% इंक्रीज होता है और उसी पैसा से 50% पैसा अपने जिंदगी को जीने के लिए, 30% पैसा आपका एंटरटेनमेंट के लिए और 20% पैसा सेव करता है फ्यूचर के लिए, 30,000 स्टार्टिंग इज गुड इनफ। उसका एक्सेल शीट मुझे अच्छा लगता है, मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। जो 30,000 कमाई शुरू करता है 60 उम्र में, मैंने बोला ये देखो ये है जरूरत, 50% अपना जरूरत के लिए, 30% अपना एंटरटेनमेंट के लिए जो नहीं होने से भी चलता है, 20% फ्यूचर के लिए सेव करता है। तो 60 इयर्स की उम्र में अगर 7% नॉर्मल प्रोविडेंट फंड पोस्ट ऑफिस में भी रखेगा, उसके पास बैंक में 1.4 करोड़ बचेगा। और अगर 10% में डालेगा तो 2 करोड़, 15% में मिलेगा 9 करोड़, और अगर 20% मिलेगा तो 35 करोड़ पैसा उसका बैंक में आएगा अगर 30,000 से शुरू करेगा सैलरी। अगर ऐसा है, और एक बात बताऊं, ये इस उम्र के बाद ना आप रॉयल स्टैग व्हिस्की पी सकते हो, ना आप चिकन मुर्गे खा सकते हो। ओट्स, मेरे CSD कैंटीन में सबसे ज्यादा बिकता है ओट्स और दालिया, क्योंकि 50-60 साल के बाद सिर्फ ओट्स और दालिया ही खा सकते हैं। तो मेरा ये सोच विचार है, पर्सनल है, आप लोग नहीं सहमत होना, बहुत लोग नहीं होंगे। मेरा ये सोच विचार है, अगर मुझे थोड़े दिन बाद ओट्स और दालिया ही खाना है तो गलत काम करके मुझे टेंशन लेके क्यों मुझे 100 करोड़ बनाना है, और जितना पैसा बनाएंगे बच्चों में झगड़ा होगा। करेक्ट? तो चैन से जियो, इज्जत से जियो। 30,000 बहुत कम है, वो गोलगप्पा वाला भी 60,000 से शुरू करता है। करेक्ट? तो जो भी पढ़ा लिखा है, तो दिस इज वन। अभी मैं आगे मैजिक दिखाता हूं। 60,000 से शुरू करो तो पैसा जाता है 71 करोड़। 1 लाख से शुरू करो सैलरी तो पैसा जाता है 119 करोड़। 2 लाख से शुरू करो 2,39 करोड़। 4 लाख पायलट 400 करोड़, 500 करोड़ पैसा बचेगा। तो जिस दिन आप दुनिया को थैंक यू बोल रहे हो 500 करोड़ बैंक में, क्या करोगे आप? रोल्स रॉयस खरीदोगे? लंबोर्गिनी? पंजाबी में सॉन्ग्स में ज्यादा लंबोर्गिनी आते हैं। करेक्ट? बट एनीवे, ये मेरा सोच विचार है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आप कुछ भी करो, अपना चॉइस का जॉब पकड़ो, इज्जत से जियो, अपना वैल्यूज को बरकरार रखो। 30,000 से ऊपर कोई भी कमाई करो, डिसिप्लिन तरीके से खर्चा करो। ना आपको ड्रग्स में पड़ना है, ना आपको दारू में पड़ना है, ना आपको गलत काम करना है, कुछ नहीं करना है। जिंदगी इज्जत से जी सकते हैं। तो ये मैंने किस लिए कैलकुलेट किया, ये सोचने के लिए कि कुछ लोग गलत काम करते क्यों हैं। वो जो क्लर्क ने इतना उसको सैलरी मिल रहा होगा 60,000, मेरे से 10 रुपया 100 रुपया मांगा क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं जिंदगी में ये पैसा का करूंगा मैं क्या। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वो गलत काम करते हुए पकड़े गए, आप जेल जाओगे, और जेल में जाओगे, आपके बच्चे और बीबी भी मिलने या हस्बैंड भी मिलने नहीं आएंगे जिसके लिए आप ये पैसा कमा रहे थे। वो आपका गलत फहमी थी कि मेरे बच्चे को पैसा चाहिए, इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे। वो बोलेगा पापा मेरे को नहीं चाहिए था ये गलत काम करके आपका पैसा, मैं चाहे इंजीनियरिंग नहीं करके मुझ और कर लेती, बट मुझे ये पैसा नहीं चाहिए था। आपको जेल में भी मिलने नहीं आएगा, वो 100 करोड़ बैंक में पड़ा रहेगा। चाहिए तो गो हेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं। एक स्वॉट
स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। एनालाइज करना है मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है और मेरे लिए थ्रेट क्या है। मैथ्स में मैं वीक हूं, क्लास 12 के बोर्ड्स में मैथ्स है, अगर मैं उसके ऊपर काम नहीं करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो मेरा एनडीए जाने का सपना टूट जाएगा, वो आपके लिए थ्रेट है। स्ट्रेंथ क्या है, मुझे साइंस पसंद है, आर्ट्स पसंद है, मैं मेहनत कर सकता हूं, मेरे घर में ये है, मेरे भाई साथ में है, मेरे टीचर है मेरे को गाइड करने वाला, ये सब सारा अपना स्ट्रेंथ है। तो एक स्वॉट एनालिसिस कर लेना, ठीक है। दूसरा एक चीज है एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। दो चीज होता है, जो पैदा ही से कोई चीज पसंद है उसको एप्टीट्यूड बोलता है, और जो हम डेवलप करते हैं उसको एटीट्यूड बोलता है। अभी देखो, आपको चाहिए एयर कंडीशन वाला काम, तो और अभी आप 1 घंटा मेरे साथ बैठे हैं पसीने में, तो बोल रहे भाई आज तो फंस गए कहां से, तो आप फौज के लिए सुटेबल नहीं हो बेटा। यू डोंट हैव द एप्टीट्यूड फॉर दैट। क्योंकि फौज में जब देगा पूरा एयर कंडीशन देगा, कोरिया भी घुमा के लाया फौज ने मुझे, गर्ल्स आई हैव स्पेंट 10 days इन सियोल कोरिया, ओके, फौज ने भेजा डेलीगेशन में, ओके। बट ओटीए में ट्रेनिंग कर, मैं इंस्ट्रक्टर था ओटीए में, राइट। ओटीए में आओगे सबसे पहले आपको ये देखो, एनसीसी में तो नहीं होता होगा, एकदम मस्ट किचन में। दूसरा, तंबू में रख दिया, कैंप कंपटीशन, कंपटीशन में ड्रेन भी आप बनाओगे ना, स्नेक ट्रेंच, सांप नहीं आने के लिए, वो उसको भी बिल्कुल सीधा है कि नहीं चेक करेंगे ना, और पूरा छोड़ देंगे जीपीएस लेके पहाड़ों में इस तरफ का। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, अपने साथी को कहीं नहीं छोड़ के आते हैं। तो जैसे एनडीए में क्रॉस कर कोई नुकसान मिलता है, माइनस पॉइंट मिलता है, तो ये देखो ये लड़का 15 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसका साथी को पीठ में लेके गया है 1 किलोमीटर कि टीम को माइनस पॉइंट नहीं मिले। अगर आप में ये सब एप्टीट्यूड है तब फौज में आना। अगर वो सोचता है मैं, मी, माई सेल्फ, मुझे खुशी, मुझे मेरा पैसा, मेरा वो, सॉरी, वैसे आ जाते हो हमारे पास तो पहला महीना में ही हम उनको ऐसे कुशल देते हैं आपको कि ये सब भूल जाते हो, करेक्ट। अब जो ईगो है, मेरे पापा के पास लैम्बोर्गिनी है, मेरे पापा ये है वो है, नथिंग। ट्रेनिंग में सबको इक्वल बना देते हैं, आपका ईगो को खत्म कर देते हैं और एक नया ईगो बनाता है। वो नया ईगो, कौन ज्यादा रोप चढ़ाई कर सकता है, कौन फास्ट दौड़ सकता है, किसका फायरिंग अच्छा है, कौन कितना बॉक्सिंग में ये कर सकता है, ये नया एक हम ईगो बना देते हैं। अगर ये सब आप में है तो प्लीज फौज में आइए, अगर नहीं है तो देखना एटीट्यूड डेवलप करना कोशिश करोगे। कुछ चीजें जो सबके पास 100% नहीं होगा वो हम ट्रेनिंग देके डेवलप करा लेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने ये सब तीनों को कंपेयर किया, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस वगैरह। तो सेफ्टी वगैरह देखो, तो गवर्नमेंट जॉब और जो बिजनेस वगैरह का है वो 9 पॉइंट लिया है मैंने। बाकी ये पॉइंट बता चुका हूं मैं कि ओनली 47 लाख गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी 1 करोड़, बाकी को प्राइवेट जॉब करना है। सो नाउ अगर मैंने ये बता दिया आपको, पहला चीज आपने देखना है कि जो जॉब मुझे करना है, कैरियर, वो मेरा पसंद का है क्या नहीं, क्या ये मेरा जो खानदानी सिखलाई है, कोर वैल्यूज है, उसके साथ है क्या नहीं। थर्ड थिंग, क्या ये मेरे को एडिक्वेट पैसा देगा क्या नहीं। फोर्थ थिंग देखना है कि इससे मुझे समाज में इज्जत मिलेगा या सिर्फ मुझे पैसा ही मिलेगा। ये सब देखने के बाद आपने डिसाइड करना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है, प्राइवेट जॉब लेना है, बिजनेस करना है, सबका प्लस माइनस है। वो करने के बाद अब देखो कि मेरे पास ऑप्शंस क्या है, आंख बंद करके किसी के पीछे नहीं चलना है। तो ये सब 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू डिसाइड व्हाट इज द कैरियर आई शुड गो। अगर ये आपको पता है जिंदगी में, फिर यू विल बी ऑन द राइट पाथ, ठीक है। सो लाइफस्टाइल, यू नो, ऑल्सो अगर आपका मन में है मैं सोशल वर्क करना चाहता हूं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, कुछ जॉब है आपको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का बहुत कम मौका मिलता है एज ए पार्ट ऑफ जॉब। अब सिविल सोसाइटी में किसी मेंबरशिप का क्लब लेके, लायंस क्लब, ब्लड डोनेशन जैसे करोगे, एनसीसी कर सकते हो, लेकिन एज ए जॉब शायद कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। एज ए टीचर यू आर कंट्रीब्यूटिंग एज पार्ट ऑफ योर जॉब, एज ए फौजी आई एम कंट्रीब्यूटिंग एज पार्ट ऑफ माई जॉब, राइट। सो देयर मे बी सम जॉब नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, किसी कंपनी का प्रॉफिट जा रहा है, लाइक दैट मेरा फ्रेंड यूएस में, करेक्ट। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देख लेना। सो एंड स्टेट, नेक्स्ट वर्ड में बोलता हूं एंड स्टेट, जिंदगी में आखिर में, ठीक है, मेरा टाइम आ गया है दुनिया से जाने का या रिटायरमेंट होने का। चलो पॉजिटिव ले लेता हूं, रिटायरमेंट होने का, कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। नंबर 1,
मुझे लोग कैसे याद रखेंगे? अगर मैं कल को मेरा यूनिट छोड़ के चले जाऊं, पूछे वो साहब कैसा था, या टीचर यहां से चले जाए वो टीचर कैसे थे, हाउ डू आई वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड? कुछ लोग बोलेगा अच्छा हुआ चला गया, दैट, और नहीं वो बहुत तक। एक मूवी मेरा फेवरेट, द लास्ट सामुराई, ये जापान के स्टोरी के बारे में है, किसी ने देखा है तो देख लेना। लास्ट में किंग पूछता है कि बताओ वो सामुराई जो है कैसा मरा? वो बोला सर नहीं बोलूंगा आपको उससे कैसा मरा, मैं आपको बोलूंगा वो सामुराई जीते कैसे थे। फिर वो पूरा सामुराई के बारे में बताते, वो जापान का स्टोरी, अमेजिंग। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हाउ डू यू लिव एवरी डे ऑफ योर लाइफ। आपके विद इन एनसीसी एक दूसरे पे, अगर मैं सोचूं सामने टाइगर है, एक लड़का एक लड़की को साथ में जा सकते हो, आप किसको लेके जाओगे? सो मेरे जब मैं एनुअल रिपोर्ट लिखता हूं मेरे ऑफिसर के बारे में, ये एक ऑफिसर है जिसको मैं लड़ाई में और कभी भी अपने साथ रखना चाहता हूं। इसका मतलब मेरा जिंदगी उसके ऊपर मैं दे सकता हूं, डिपेंड कर सकता हूं। ऐसा बनना पड़ेगा आपको, और वो सब एक दूसरे को जानते हैं। हाउ मच कुड यू केयर फॉर योर फैमिली? आपका जो जॉब है, अगेन जो अच्छे विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो आपका आईटी सेक्टर में काम करे, गुड़गांव में, नोएडा के, उनका हालत देख लो। सुबह 6 बजे निकलते हैं, रात को आते हैं, बच्चे बोलते हैं मूवी दिखाने टाइम नहीं है, थके हुए हैं, कोई टाइम नहीं मिला आपको जिंदगी में। तो इसमें मैं फौज का बोलूंगा, जब हमको फील्ड में रख दिया 2-3 साल ठीक है, लेकिन जब पीस में आ गया, साहब आके बोलते हैं सर मेरे को हॉस्पिटल जाना है वाइफ को लेके, प्लीज गो, छुट्टी लेने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि ये अलग है। हम एक दूसरे के बारे में इतना जानते हैं, हर चीज जानते हैं, क्योंकि वी आर नॉट ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज जॉब, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज लाइफ, फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज कैरियर, फॉर एवरीथिंग। ठीक है, व्हाट कंट्रीब्यूशन कुड यू मेक टू द सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको। एंड लास्ट, व्हाट वैल्यूज डिड यू पास टू योर चिल्ड्रन? आपके जॉब जो किया आपने, आपका वैल्यूज को बचा के रखा, और आपके बच्चे उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप गलत काम कर रहे हो, वो बच्चों को भी पता है पापा गलत काम कर रहे हैं, और वो वही सीखेंगे। या तो वो सीख के वो भी करेंगे, या वो उसके लिए आपको घृणा करेंगे, पापा आप क्या गलत काम करते हो, लोगों से पैसा लेते हो। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स दैट विल डिसाइड योर कैरियर और प्रोफेशन इन लाइफ। सो हाउ टू डिसाइड योर एम? अपना जरूरत का सोचो, नीड्स, कितना पैसा चाहिए जिंदगी में, अपना स्वॉट एनालिसिस करना है, मेरा स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, एप्टीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड है क्या नहीं मेरा फौजी काम के लिए। मैंने बताया आपको फौजी काम है तो आपको कीचड़ में भी जाना पड़ेगा, बंकर में रहना पड़ेगा, फैमिली से सेपरेशन होगा, लेकिन जब अच्छा मिलेगा। लेकिन क्या आपका एप्टीट्यूड है? अगर नहीं है, क्या मैं एटीट्यूड डेवलप कर सकता हूं? जैसे देखो, मैं कोरिया में गया था, मेरे साथ जितने भी थे, कोरियन खाना कोई नहीं खा पाए, क्योंकि कोरियन खाना में हर चीज में वो समंदर का वो फर्मेंटेड चीज डाल देते हैं। सो यू डोंट हैव एप्टीट्यूड फॉर दैट, सो यू एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर दैट। सो 7 दिन हो गए खा नहीं पाए कुछ, मैं नोटिस हूं, मैंने मजे किया, मैं खा सकता हूं। ठीक है, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट वर्सेस बिजनेस, मैंने बता दिया। किसी में जॉब सिक्योरिटी है, प्राइवेट में है, आपको 4 लाख रुपया दे रहा है, कल से बोला सॉरी कंपनी का लॉस हो गया, थैंक यू, जय हिंद, कुछ नहीं कर सकते। सो वो भी आपका इनसिक्योरिटी है। ठीक है, अभी ईरान में लड़ाई हो गया, ऑयल कंपनी है, कितना यूएस के फटाफट बोला, यूएस ने बोला मिसाइल खत्म करो, काम करने। सो जॉब सिक्योरिटी, दैट इज वन थिंग। बट देन मेरे को बोलते हैं अभी मूव तो मूव, पोस्टिंग तो पोस्टिंग, पंजाब जाने तो पंजाब। मेरा एक दोस्त था, उसने मांगा था दिमापुर, उसको मिला तेजपुर, बोला 50% सेटिस्फेक्शन है ना, पूर मिल गया। एक साहब ने मांगा था मद्रास, उसको भेज दिया द्रास, बोला 50% सेटिस्फेक्शन इज ओके। सो देयरफॉर वो हमारा नुकसान है। फ्लेक्सिबिलिटी तो बिजनेस है, आज दुकान बंद कर, मन नहीं करे बंद कर दो, जाओ क्लोज, बस खत्म कहानी। सो सबका प्लस माइनस है, लेकिन बिजनेस का भी आपका रिस्क है। कोविड हो गया, लोन लेके रखा हुआ है, बिजनेस नहीं चल रहा है, करे क्या? और सबसे बढ़िया हम कोविड में भी थे, थैंक्स टू गॉड, गवर्नमेंट, है ना, एंड एवरीबडी हु इज पेइंग टैक्स, है ना। तो एंड स्टेट, तो जिंदगी में लास्ट में मैं भाई किस तरफ से, हाउ शुड पीपल रिमेंबर मी, मैं यहां से जाने के बाद आज आप लोग बोलोगे वो पता नहीं ब्रिगेडियर सर आए थे, पसीना पसीना करके पता नहीं क्या बोला, कुछ ऊपर से निकल गया और छोड़ के हमें चले गए। करेक्ट। पार्ट 2, ये सब सोच समझ के आप अपना एम को डिसाइड करना है। जब एक बार एम डिसाइड कर लिया, आप भी करना है इसको हासिल।
और इरादा पक्का है। एक बार डिसाइड कर लिया, वो मूवी में डायलॉग बनते हैं ना, मैं खुद का भी नहीं सुनता, डायलॉग है ना? ओके। हाउ टू प्रिपेयर, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप लोगों ने बता दिया, आप लोग में कोई स्ट्रेस नहीं है। फोकस, माइंड कंट्रोल, ये मोबाइल, सोशल मीडिया, स्मार्ट स्टडी। किसने लिखा है हाउ डू यू अचीव योर एम, बोला मुझे पता है स्मार्ट स्टडी से मुझे अचीव करना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है अगेन, ठीक है? सो हाउ टू प्रिपेयर, आपका टीचर्स और फैकल्टी यही बताते रहते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ वही बोलूंगा जो मैं करता था, ठीक है? सिलेबस को ले लो, मेरे पास टाइम कितना है देख लीजिए, उसका टाइम प्लान बनाना है, 1 ईयर 2 ईयर का टाइम प्लान बनाना है, उसके ऊपर काम करना है। हम कैसे करते हैं, मुझे कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेरे पास 2 साल है, पूरा सिलेबस इकट्ठे कर लिया, मैंने देखा 6 पेपर है, हर एक पेपर में 30 चैप्टर है, तो मैं पहले बार पढ़ूंगा एक सब्जेक्ट के लिए मुझे 15 से 20 दिन लगेगा, यानी 1 महीना में 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो 3 महीना मेरा निकल गया एक बार रीडिंग में। सेकेंड टाइम फिर पढ़ूंगा, मैं नोट्स बनाना शुरू करूंगा, नेक्स्ट टाइम में 15 की जगह 10 दिन में खत्म कर लूंगा। ऐसे करके मेरा 2 महीना और निकल जाएगा, तो 5 महीना निकल। नेक्स्ट रिवीजन में मैं 8 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करूंगा, 4, अगला रिवीजन में 3 में। ऐसे करते करते एग्जाम से पहले में 5 से 6 रिवीजन मुझे होना चाहिए, और एग्जाम के दिन में मेरा नोट्स ऐसा होना चाहिए कि शाम को, क्योंकि फौज में एग्जाम मंडे से फ्राइडे को होता है, बीच में कोई गैप नहीं है, तो रिवीजन के लिए शाम को 2 बजे आया, रेस्ट किया, 3 बजे से शाम को 8, 9, 10 बजे तक 4-5 घंटे में पूरा मैंने रिवीजन करना है। यानी जो चीज मैंने 20 दिन में पढ़ना शुरू किया था, कंप्लीट एक सब्जेक्ट, अभी मुझे 4 घंटे में रिवीजन करना है। तो मेरा नोट्स एकदम, मेरे कुछ साथी हैं, नोट्स ऐसा होता है, पन्ने से उठाते हैं फेंक देते हैं, पन्ने कैसे उठाते हैं फेंक देते हैं, मतलब रिवीजन हो गया वो 4 घंटे में, तभी खत्म कर पाएंगे, नहीं तो खत्म नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो आई विल फिनिश इट। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जो मैंने बताया वही टाइम मैनेजमेंट है। अगर मैंने आज ये 20 दिन में इतना 30 चैप्टर खर्चा करना है, खत्म करना है, तो एक दिन में मेरे को एक चैप्टर, तो उसमें 10 पेज है, तो पता है मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो मेरे को नेटफ्लिक्स देखना है, फेसबुक करना है, जो भी करना है, मूवी देखना है, पहले ये मैं खत्म करूंगा, उसके बाद ही वो करूंगा। अगर मुझे लगता है कल घर में गेस्ट आने वाला है, मैं कहीं पिकनिक में जा रहा हूं, मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं सैटरडे को ज्यादा मेहनत करके उसको खत्म करके रख लूंगा, लेकिन अपना टाइम को मैं बर्बाद, टाइमलाइन जो है उसको टिक लगाना जरूरी है, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, ठीक है? स्ट्रेस मैनेजमेंट ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे को कभी स्ट्रेस हुआ था लाइफ में, 11 महीना छुट्टी नहीं आया था, वो पार्लियामेंट अटैक हो गया था, वाजपेयी मुशर्रफ साहब का, बहुत फायरिंग शुरू हो गया था। एक दिन बड़ा सा पत्थर था, उसमें लिखा मैंने दिस टू शैल पास, ये लद्दाख का पिक्चर है, मैं लेफ्टिनेंट था, यहां पे लिख दिया दिस टू शैल पास, ये आज का है, कल खत्म हो जाएगा, तो स्ट्रेस अपने आप खत्म हो गया। अगर मैं सोचूंगा यार क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, गोला आ रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। सिमिलरली ये सियाचिन ग्लेशियर में अभी जस्ट एक गोला गिरा है, 5 मीटर में गिरा है, बल बल बचाऊं, और मैं बढ़िया से जाकर फोटो खींच के आना, भाई कोई बात नहीं। अगर मैं डरना शुरू कर दूंगा तो अपने जवानों को कैसे लीड करूंगा, ठीक है? तो स्ट्रेस आ सकता है कभी हमारे लिए कॉम्बैट सिचुएशन में, स्ट्रेस आ सकता है, मैं पढ़ाई नहीं किया। स्टूडेंट के लिए स्ट्रेस कब आता है? मैंने बोला ना, मैंने सोचा था मैं 5 रिवीजन करूंगा, एग्जाम आ गया, एक भी रिवीजन नहीं हुआ, तब मेरे को स्ट्रेस आएगा, क्योंकि मैंने क्यों पिकनिक, सोशल मीडिया, फेसबुक वो सब करता रहा, तो अभी स्ट्रेस आ जाएगा। और पापा ने बोला इस बार तुमने अच्छा नंबर लाना है, टीचर्स ने बोला अच्छा नंबर लाना है, तब मेरे को स्ट्रेस होगा। सो स्ट्रेस से बचने का एक ही तरीका है, प्लान बनाइए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, दैट्स ऑल। माइंड कंट्रोल, मन बहुत इधर उधर भागेगा, उसको कंट्रोल करना है। स्मार्ट स्टडी, किसने बोला है? हर चीज पढ़ने के बजाय हर एक सब्जेक्ट में उसको डिवाइड करो, मस्ट नो, शुड नो, कुड नो। अगर मेरा यह चैप्टर है अबाउट पॉल्यूशन, 3 क्वेश्चन होगा जो मस्ट नो है। व्हाट इज पॉल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, हाउ कैन पॉल्यूशन बी प्रिवेंटेड, ये मस्ट नो क्वेश्चन है। उसके बाद शुड नो में आएगा हाउ कैन प्लास्टिक पॉल्यूशन बी अवॉइडेड, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन बाय गवर्नमेंट,
ऐसे ऐसे कुडनो होगा, इटली में कैसे पॉल्यूशन होता है, कुडनो, इटली में, यूएस में कैसे पॉल्यूशन होता है, दैट इज कुडनो। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी इटली का अच्छा फोटो देख के उसमें घुस जाते हैं और जो मस्ट नो है उसको नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा ये स्मार्ट स्टडी का मतलब है, सब्जेक्ट को समझो और व्हाट इज मस्ट नो, शुड नो, कुड नो, इसको पहचान लो और उसको पहले पढ़ो, मस्ट नो को ज्यादा पढ़ो, दैट इज द स्मार्ट स्टडी। दूसरा एक एग्जॉस्टिव, और कोई कोई लोग है फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक पढ़ेगा, पहली बार पढ़ो लेकिन पढ़ते हुए अंडरलाइन करते जाओ, टिक करते जाओ, हाईलाइट करते जाओ। सेकेंड बार में वो जो कुछ वो सब मत पढ़ो, सिर्फ ये वाला पढ़ो। थर्ड स्टडी में सिर्फ डेफिनेशन रट्टा मारो। फोर्थ स्टडी में किताब बंद करो, लिखना शुरू करो, फिर देखो मेरे को क्या क्या मिस्टेक किया, फिफ्थ रिवीजन में पूरा 100% हो जाएगा। सो एग्जॉस्टिव वर्सेस सिलेक्टिव, शुरू में एग्जॉस्टिव करो, बाद में सिलेक्टिव स्टडी करो। कभी कभी मैं क्या करता हूं, हमेशा देखता हूं बुक फर्स्ट पेज से शुरू करता हूं, 30 नंबर पेज में जाके थक जाता हूं, तो मैं कभी कभी संडे को उठता था, लास्ट पेज खोलता था, फिर उधर से शुरू करता था, कहीं ना कहीं दोनों जाके मिल जाते हैं। साइकिल ऑफ स्टडी मैंने बता दिया, फर्स्ट साइकिल सारा पढ़ना है, सेकंड साइकिल कम टाइम में, थर्ड साइकिल कम टाइम में, फोर्थ साइकिल, फिफ्थ साइकिल। एग्जाम से पहले 7 रिवीजन होना चाहिए। अगर मैं चैप्टर का नाम बोलूं, आपका आंखों के सामने क्वेश्चन भी आ जाएगा, आंसर भी आ जाना चाहिए। उसके बाद गिटार जैसे बजाता है, मैं अभी गिटार सीख रहा हूं बुढ़ापे में, मसल मेमोरी बोल के एक चीज है, तो ब्रेन का भी मसल मेमोरी है। आप 5 रिवीजन करोगे तो आपको सारा मसल मेमोरी में आ जाएगा ब्रेन में, और क्वेश्चन देखते ही आपका टकाटक टकाटक लिखना शुरू हो जाएगा। और जो मैंने बोला था ना, जेब में गोली लेके घूम रहे हो, करेक्ट टाइम पे आप उधर फेंक के आ जाना। ओटीएच चेन्नई में मैं इंस्ट्रक्टर था, वहां पे आंसर शीट का इंडेक्सिंग होता है, वहां पे भी एग्जाम होता है, तो आंसर शीट देख के पता लग जाता है ये गर्ल कैडेट का पेपर है या बॉय कैडेट का पेपर है, क्योंकि जो बॉय लिखता है वो टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर, जो गर्ल्स लिखता है एकदम सीधा सीधा टकाटक टकाटक बिल्कुल। इसलिए एनडीए में जो इस बार पास आउट हुए हैं, टॉपर हुई लड़की फर्स्ट बैच के आर्ट्स में, करेक्ट। फिजिकल फिटनेस वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, दे से ना ऑल वर्क्स मेक जैक ए डाल बॉय, तो अपना खेलने के लिए फिजिकल फिटनेस जरूरी है, क्योंकि आपका जो स्टेमिना है वो बहुत पढ़ने का, उसके लिए गेम वगैरह स्पिरिचुअल, लेकिन वो गेम मत पकड़ो जिससे टाइम वेस्ट होता है। क्लास 7 में मेरे को क्रिकेट का नशा हो गया था, तो मेरा क्लास 7 में थोड़ा नंबर कम आ गया। उस दिन मैंने भगवान को नाम लिया, क्रिकेट के बैट को जंगल में फेंका, उस दिन से मैंने क्रिकेट टच नहीं किया, सॉरी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। फुटबॉल 1 घंटा खटाखट, एथलेटिक्स 100 मीटर्स खत्म। तो मैं क्या, मेडल तो चाहिए, तो मैं एथलेटिक्स में हिस्सा लेता था, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, 100 मीटर्स, 4x100, 4x400, गोल्ड मेडल लेके बैठ गया मेरे ऊपर, खत्म कहानी। 1 हफ्ते का प्रैक्टिस, नथिंग एल्स, करेक्ट। क्रिकेट ना, फिजिकल फिटनेस जरूरी है, मैंने बता दिया। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, आपको योगा भी कराया होगा एनसीसी में, बढ़िया बढ़िया पानी के पास ले जाके। लुक स्मार्ट, फील स्मार्ट। मेरा एज कितना है गर्ल्स, व्हाट्स माय एज? हाँ, व्हाट इज माय एज? एनीवन? कैडेट, या प्लीज गेट अप। या व्हाट्स माय एज? 35. सॉरी? 35. 35. थैंक यू मैम, थैंक यू। आई एम 48 years old, थैंक यू। ओके, ठीक है। 21 किलोमीटर हर संडे को भागता हूँ, 5 किलोमीटर रोज भागता हूँ। किसी को दौड़ने का शौक है, संडे को आ जाइए मामून में, वी विल रन टुगेदर, ओके ओके, ठीक है। सो अभी तक मेरा लेक्चर खत्म हो गया। बस मेरा जर्नी जो मैंने बताया, आपको लगेगा कोई कोई की झूठ बोल रहा है, तो जस्ट टू प्रूव, ऐसा नहीं सोचना कि सर तो बहुत पता नहीं कहां से आ गया, नहीं, सॉरी। मैं असम का एक गांव से आया हूं और मैं एक ट्राइबल का हूं, और मेरे अपना ट्राइब का पहला कर्नल बना, अभी पहला ब्रिगेडियर हूं इनफैक्ट, ठीक है। तो पिताजी इंदिरा गांधी के टाइम का एमएलए थे, उस टाइम तो मुझे पॉलिटिशियन बनना था, लेकिन पिताजी ने बोला भाई इधर तो कभी भी कुछ भी बन जाएगा, तू दुनिया को जाके दिखा के क्या बन सकता है, इसलिए मैं फौज में हूं। लेकिन अभी जिस दिन जाऊंगा, उस दिन वो पिताजी का सीट खाली है। ओके गुड, वोट देंगे मेरे को लोग, देखेंगे, ओके। ये मेरा स्कूल था, और ये जो टूटा हुआ है ना, इसमें मैं पढ़ता था, मैं इसमें पढ़ता था। अभी वो दबर कंपनी ने नया बिल्डिंग बना दिया सीएसआर में, अब उस स्कूल में पढ़ के आया हूं मैं। सो कोई मत सोचना कि मैं गांव का लड़का हूं, लड़की हूं, मैं नथिंग लाइक दैट। विलेज इज द बेस्ट।
जैसे आप लोग कर रहे हो आज, देख के बहुत अच्छा लगा। पूरा ज़िंदगी मैंने यही किया है। सैनिक स्कूल में एनसीसी कंपलसरी है, ठीक है। मैं स्कूल कैप्टन था। क्लास 10 में नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप मिला था मेहनत से। मैं स्कूल का चौथा लड़का था जिसको मिला था। क्लास 11 में पहला चेक मैंने अपने पापा को दे दिया था क्योंकि स्कॉलरशिप मुझे मिल गया था। उसके बाद पिताजी से कभी पैसा नहीं लिया, हमेशा दिया हूँ। अगर ऐसा मन में ऐसा है, यू नो व्हाट टू ज्वाइन, आपको पता है क्या ज्वाइन करना चाहिए, करेक्ट। बाकी ये मैं स्कूल क्लास 11 में गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा था। मेजर जनरल आरजे मॉर्डेकाई शिलोंग का 101 ईयर वीआईपी आए थे। और अभी मैं हाल ही में एक ऑफिसर का फ़ोन आया, कहता सर मैं लेफ्टिनेंट कर्नल मॉर्डेकाई बोल रहा हूँ। मैंने बोला फौज में मॉर्डेकाई मैं सिर्फ एक बार सुना था जब मैं बचपन में था। जनरल मॉर्डेकाई, आप उनका बेटा तो नहीं हो? बोला यस सर मैं उनका। तो उनका बेटा अभी फौजी है। तो उस टाइम पे मेजर जनरल मॉर्डेकाई साहब थे, ठीक है। और ये सब कुछ कंपटीशंस वगैरह ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ। कहने का मतलब अपना ज़िंदगी जो है पहले से शुरू हो चुका है। आपका भी ज़िंदगी शुरू हो चुका है। आपने पहचानना है मैंने जाना कहाँ है। डॉक्टर बनना था मुझे। एक बार स्कूल के सामने एक्सीडेंट हो गया, 18 लोगों के जाके देखा, किसी का ब्रेन निकला हुआ है, किसी का। मैंने प्रिंसिपल को बोला सर मेरे को डॉक्टर बनना है, मुझे हैंडल करने दो। बोला तुझे क्या आता है? मुझे कुछ नहीं आता, डोंट वरी। अपने लड़कों को लिया 5-6, मुझे लगा मैं डॉक्टर बन गया हूँ। किसी का ब्रेन पकड़ के डाल रहा हूँ, किसी का गमछा से बांध रहा हूँ, किसी का टांग टूटा हुआ बांध रहा हूँ। बस मंगा, बस में बिठा के हॉस्पिटल में ले गया सबको। और जो हमने किया, अगले दिन पूरा असम में न्यूज़पेपर में आया, स्कूल के बच्चों ने 18 जानों को बचाया। स्कूल को बहुत तारीफ मिली। तो कहीं मुझ में ये लगता था शायद मैं डॉक्टर बन सकता था, लेकिन जैसे ये फोटो देख के तो लग नहीं रहा कि मैं डॉक्टर के लिए तैयार हो रहा था। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्कमस्टेंसेस इन लाइफ। आपको जो एनसीसी का ट्रेनिंग मिल रहा है, सीओ साहब मिल रहा है, आपको कुछ मिल रहा है, आपको जिंदगी में कहीं एक आपको दिशा दिखा रहा है, तो उसको पकड़ो। जरूरत नहीं कि आपको शेयर ट्रेडिंग में ही करना है, क्योंकि वो आपके पापा को देख के सोचा है आपने। लेकिन आज मेरे लेक्चर के बाद आपको सोचोगे कि जब आप रेस्टोरेंट में जाओगे, अभी एक ब्रियू स्टेट है ना पठानकोट में, ब्रियू स्टेट में जैसे मैं जाता हूँ वहाँ मैनेजर सर आइए सर बोल के बिठाता है, स्पेशल टेबल रखता है। ये एनडीए के कुछ पिक्चर्स है। ये उस टाइम के कमांडेंट था, एडमिरल साहब थे, बाद में वो नेवी का चीफ बने थे। नेवी कैडेट हो ना, नेवल कैडेट, नाम सुना है? या सॉरी, डू यू नो हिम? ही वाज चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश। ही वॉज माई कमांडेंट इन एनडीए। तो ये एक बैनेट फाइटिंग कंपटीशन होता है, 300 बच्चों में मैं फर्स्ट आया था। मेडल दिया तो वो ब्यूटी क्वीन जैसा होता है। फर्स्ट राउंड 50 सिलेक्ट, नेक्स्ट राउंड 20 सिलेक्ट, नेक्स्ट राउंड उसमें देखते हैं कौन ज़्यादा जंप करके फेरोसियस। और मेरा ट्राइबल हूँ, मेरा फेरोसियस दिखा दिया। छोटा सा हाइट हूँ लेकिन गोल्ड मेडल मिला। तो साहब ने पूछा मेरे को, विच प्लेस डू यू ऑनर माई सन? मैंने बोला सर आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल प्लेस इन असम। He says that place is no longer small, that place is now very big because of you. And later on he is chief. और साहब मुझे अभी भी याद करते हैं। अभी 2 साल पहले मिला था और मेरे को याद किया उन्होंने, अभी भी याद है उनको। यस यस गो। ये बाकी एनडीए का है, ये बॉक्सिंग वगैरह जो भी है। अगर ये सब एप्टीट्यूड है, दिस इज द लाइफ, ठीक है। इतना मोटिवेशन था। मैंने जो गाउन पहनना होता है वहाँ एनडीए में बाथरूम में ऐसे नहीं जा सकते, पूरा गाउन पजामा पूरा पहन के जाना पड़ता है। वो गाउन में भी मैंने अपना पेंटिंग बना लिया था एक सोल्जर का। और मेरा एक भाई था फाइन आर्ट्स में, उसको बनाया, ठीक है। वो अभी भी है मेरे पास, उसको फ्रेम करना है रिटायर होने के बाद, ठीक है। और फिर आईएमए में पहुँच गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। तो चैटुट क्रेडो सिखाते हैं, द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर मैन कम्स ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट, द ऑनर वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ योर मैन कम्स नेक्स्ट, योर ओन कंफर्ट कम्स लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। ये है चैटुट क्रेडो, फील्ड मार्शल सर चैटुट ने बोला है, उसको हम फॉलो करता हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है। और ये कारगिल लड़ाई में जो तीनों चीफ थे उनके साथ मेरा फोटो है। ये एयर चीफ मार्शल टिप्नी साहब है। उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा आपने एयरफोर्स क्यों ज्वाइन नहीं किया? क्योंकि मेरा होम टाउन से 5 किलोमीटर में एयरफोर्स स्टेशन है। अभी मैं उनको कैसे बताऊं कि मेरे मम्मी ने बचपन से इतने MiG-21 का एक्सीडेंट देखा है, एयरफोर्स तो बिल्कुल अलाउ नहीं करना था। बट उनको मैं ये सच नहीं बोल सकता हूँ, एक बार जिंदगी में झूठ बोला है। तो मैंने सर को बोला, सर मेरा आंखों में प्रॉब्लम था। बट बगल में जनरल मलिक साहब भी खड़े थे, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं एयरफोर्स जाना चाहता था, आर्मी में फंस गया, तो मैं दुविधा में आ गया था, ठीक है। एनीवे, तो इन तीनों के साथ मेरा फोटो है, वो मैंने नहीं डाला है, तो मेरे लिए हिस्टोरिक फोटो। एंड देन लाइफ, खारदुंगला सुना होगा, हाईएस्ट मोटरेबल रोड था, ओपन जीप में क्रॉस किया हूँ विलीस में मैंने, करेक्ट।
5 स्टार होटल में ब्रेकफास्ट करने को नहीं मिलता है भाई साहब, रोड साइड में रोक के ऐसे बैठ के खाना पड़ता है। लेकिन बगल वाला अगर राजस्थान पंजाब है, बगल में लस्सी पक्का आ जाता है, लस्सी लेके आ जाता है, साहब जी लस्सी। दैट इज द रेस्पेक्ट, बिकॉज जो भी प्रदेश दुश्मन के सामने किया है, जो भी थ्रेट में आया है, वो फौज को बहुत इज्जत करते हैं। एक रामगढ़ बोल के जगह है राजस्थान में, जैसलमेर के आगे, गांव वाला आके बोलता है साहब इस जगह पे हमने 71 की लड़ाई में पूरे गांव वालों ने 24 घंटा खुदाई करके पानी निकाल के फौज के लिए दिया है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर, राइट। सो ज्यादा नहीं, यूएन मिशन सूडान भी गया था मैं। ओके, अनदर लास्ट 5 मिनट्स, आई थिंक 5 मिनट्स आई गॉट, 5 मिनट्स आई गॉट। अच्छा नहीं, बिकॉज आई एम हरिंग अप नाउ, आई कैन सी पीपल टॉकिंग, यू नो। ओके, सो आप लोगों ने मासाई मारा सुना होगा। जब ज्योग्राफिक, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, बच्चे तो आजकल देखते नहीं होंगे ज़्यादा, नेशनल ज्योग्राफिक देखते हुए मसाई मारा, तो मैं मसाई मारा में सफारी में गया था। ये मसाई गांव में गया, वो $1000 लिया, बोलता है गांव घुमाएंगे, $1000 $100। सो उधर बोला कि सर जंप करना है, तो मेरे को इनके साथ जंप किया। वो जो सारे 18 साल के, उनको जंगल में शिकार के लिए भेज देते हैं, और जो लायन मार के आएगा तभी उसको शादी करने अलाउड है, उससे पहले उसको अलाउड नहीं है शादी करने का। और दूसरा, जब आएंगे बोले कौन ज्यादा जंप कर सकते हैं उसको सबसे सुंदर लड़की मिलेगी। और मैंने सबसे ज्यादा जंप कर लिया, बोला सर नाउ यू कैन सिलेक्ट ए गर्ल। मैंने बोला ना भाई ना, आई कांट डू दैट एनीवे। और उनका हाइट देख लीजिए, बट मुझे फॉरेनर जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा था वहाँ पे ना, थोड़ा सा गोरा चिट्टा लग रहा था मैं, ठीक है, ओके। बाकी वही उसमें इसलिए हम गए थे क्योंकि सिविल वॉर चल रहे थे। एक गांव से इतना AK-47 निकल गया कि हमारे साथ पूरे फौज में भी नहीं होंगे, यू नो, उसको हमने कराया प्रॉब्लम। बट देन आपको पता होगा उस टाइम पे 2007 की बात है ये, नॉर्थ सूडान साउथ सूडान का पीस ट्रीटी, बाद में दोनों सेपरेट हो गया। दैट इज अभी साउथ सूडान रेफरेंडम होके अलग कंट्री बन गया, फैकल्टी को पता है। बाकी लास्ट मेरा एज ए यूनिट कर्नल, जो मैंने यूनिट का कमांड किया, बटालियन कमांड किया मेरा, उरी के टाइम पे मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में कमांड किया, तो वो जो इज्जत है मेरे लिए वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि एज ए CO ऑल्सो मैं उनके साथ जवान से बेहतर कर सकता था। रनिंग में मैं फर्स्ट 3 में आता था बटालियन में, करेक्ट। एज ए CO में फुटबॉल और पहला गोल कंपटीशन में, टूर्नामेंट में मैंने ठोका। उसके बाद CO साहब ने बस कंधे पे लेके घूमते रहना, ठीक। ये वैष्णो माता पीछे बैकग्राउंड में मेरा ग्रुप फोटो बढ़िया से। और हमने यूनिट को अवार्ड भी मिला, जो उरी के टाइम पे अच्छा काम किया मेरे अंदर, तो नंदन आर्मी कमांडर साहब से हमने अवार्ड लिया। और मेरे लिए लास्ट एंड स्टेट, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले एंड स्टेट, कि मुझे लोग कैसे याद रखेंगे, मेरे लिए एंड स्टेट यही है, जिस दिन मैंने बटालियन छोड़ा लोग रो रहे थे, लोग रो रहे थे। ये ट्रेडिशन है, मालाएं पहना के, फूल पहना के, पूरे आपको यूनिट से डेट देख सकते हो। 8 अक्टूबर 2018 को मैंने शाम को 6 बजे 4 बजे कमांड हैंडओवर किया, और ये मेरे लिए खत्म। आई हैव अचीव्ड वॉट एवर आई वॉन्टेड एंड मच मोर। मेरे लिए खुद के लिए मैंने मेजर का रैंक रखा था, कर्नल लेके रिटायर हो रहा था, रिटायर नहीं सॉरी यूनिट छोड़ा, अभी फौज ने ब्रिगेडियर भी बन दिया, एंड सो एवरीथिंग इज प्लस। सो अभी मैं सोच रहा हूँ मैं सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, एंड जो मैं आज आपके बीच में आया हूँ वो उसी का एक हिस्सा है। और जैसे मैंने बताया 4 अलग जगह पे मैं इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ। अभी जितने भी वुमेन ऑफिसर्स है OTM में मैंने ट्रेनिंग कराया है, और 2 साल पहले मैं इंस्ट्रक्टर था, उनको मैंने पढ़ाया हुआ है। ये मैडम जो है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल ताशी, अभी कर्नल ताशी है, ये अभी एक कमांडिंग ऑफिसर है एक यूनिट का, ये सब सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो भारतीय सेना में अभी 5000 ऑफिसर है जो मेरा स्टूडेंट है, और अभी जहाँ भी जाता हूँ मैं गुरु दक्षिणा, करेक्ट। और ये मैंने बोला था कोरिया में भी 10 दिन मुझे घुमा के लाया फौज ने, डेलीगेशन एज पार्ट ऑफ इंडियन डेलीगेशन, 7 स्टार होटल में रखा। ट्रेन टू बुसान एक मूवी है, ट्रेन टू बुसान में मैं बैठा हूँ, आई हैव टेकन द ट्रेन टू बुसान में घुमा हूँ। एंड ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर है, ये नॉर्थ कोरिया का बिल्डिंग है, ये साउथ कोरिया का बॉर्डर, दिस इज द बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। DMZ डीमिलिटराइज्ड जोन, वहाँ पे अमेरिकन आर्मी और कोरियन आर्मी मिलकर पेट्रोलिंग करता है, वहाँ पे गया। सो दैट इज हाउ इट इज। एंड ये कोरियन फूड मैं मजे ले रहा था, बाकी लोग नहीं खा पा रहे थे, लाइक आई टोल्ड यू, ठीक है। बट देन अनदर प्लस पॉइंट, देखो जिसका पैसा है खुद भी जाके कोरिया जाके आएगा, लेकिन इसका मजा ही कुछ और है ना, दैट इज द पॉइंट। बाकी फिजिकल फिटनेस का मैंने बता दिया आपको। बाकी जगह आपको गोल्ड जिम ज्वाइन करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है फिटनेस के लिए। यहाँ पे पैसा तो मुझे मिलता है फिटनेस रखने का, क्योंकि जो ऑफिसर या जवान सुबह PT में आ गया, मेरे तरफ से वो आज प्रेजेंट है, चाहे वो PT के बाद हॉस्पिटल चले जाए, कहीं इधर चले जाए, मेरे लिए वो प्रेजेंट है। दैट मीन्स
फिजिकल ट्रेनिंग इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ, पार्ट ऑफ माई जॉब। तो मेरे को जॉब के लिए पैसा मिल रहा है, तो डेफोर आई से कि आई गेट पेड टू कीप माई सेल्फ फिट। तो जैसे मैंने बताया था 35 वर्सेस 48 ईयर्स, सीक्रेट इज दिस ओनली, एवरी संडे थोड़ा स्टाइल भी कर लेता हूँ, अलग अलग ड्रेस खरीद के, जूते में मैं खर्चा करता हूँ थोड़ा सा, 2-3 लाख का जूते हैं मेरे पास, क्योंकि कॉस्टली शूज़ 15,000 से कम नहीं आता है, और एक ही जूते में भागने को अच्छा नहीं लगता है। 2000 किलोमीटर में एक जूते खींच जाता है, और एक साल में मैं 2500 भाग लेता हूँ। सो देयरफॉर एवरी ईयर आई हैव टू बाय 2 पेयर्स ऑफ शूज़। और मेरे यूएस में जो 2 फ्रेंड है उनको भी यूज़ करता हूँ, वहाँ से जूते लाते हैं मेरे लिए वो रनिंग वाले, ठीक है। तो वो भी खुश होते कि फौज के लिए हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दैट इज द ओनली वे दे कैन कंट्रीब्यूट। सो दैट्स इट। सो अभी लास्ट में यही मेरा सोच है, एक चीज होता है फियर ऑफ फेलियर एंड सक्सेस ऑफ होप। काफी लोग, मैं खुद कुछ चीजों में मैं घुसता ही नहीं हूं, ये सोचता कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। आप लोगों के जो आंसर देते हो उसमें भी पता लगता है कि मुझे फियर ऑफ फेलियर है, होप ऑफ सक्सेस। ये उम्मीद करो कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा, लेकिन सिर्फ उम्मीद करके सोते रहने से नहीं होगा। उम्मीद करके सोचना है कि इसके लिए मैंने करना क्या है, एंड उसके बाद उसके ऊपर काम करो, तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। दूसरा है एम डिसाइड करो और उसके लिए काम करो, मेहनत करो। करेक्ट सिलेक्शन ऑफ एम मैंने बता दिया, एंड एक कम से कम 2 ऑप्शन रखना जरूरी है, भले ही 3 ना हो, 2 ऑप्शन। अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, मैंने जैसे बताया, अगर आईटीआई करना है ना तो साइंस रखना पड़ेगा आपको, भले ही आपको साइंस अच्छा नहीं लगे, लेकिन 11-12 में आपको साइंस रखना पड़ेगा, देन आईटीआई हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये मेरा होम स्टेट का मेरा स्टडी है, मेरा असम में क्लास 12 में 1 लाख बच्चे पास हुए, उसमें से 80,000 बच्चे आर्ट्स के हैं, 20,000 बच्चे कॉमर्स के हैं, 10,000 बच्चे साइंस के हैं। अभी मैं 80,000 जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए जॉब के लिए क्या ऑप्शंस हैं? ग्रेजुएशन, टीचर, लॉ, बिजनेस, ज्यादा नहीं है। सो इसीलिए साइंस का थोड़ा सा महत्व है। या तो आप कॉमर्स करो जिसमें थोड़ा सा बिजनेस में एवेन्यू है, बट अगेन गवर्नमेंट जॉब में, या तो आर्ट्स में आप करो गवर्नमेंट जॉब। सो अगर एनडीए में देखोगे, नेवी में जाना है साइंस इज कंपलसरी, एयरफोर्स में जाना है साइंस इज कंपलसरी। सो देयरफॉर साइंस का जरूरत महत्व है। और व्हाट इज साइंस? हम कोई बच्चे डर जाते हैं, साइंस इज नथिंग, इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम गूगल करके देख लो, द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अभी फौज में मुझे फायरर से ज्यादा चाहिए ड्रोन ऑपरेटर, मुझे ज्यादा चाहिए जो ड्रोन बनाता है, मुझे चाहिए जो नाइट विजन डिवाइस बनाता है। नाइट विजन डिवाइस बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, अलग अलग डिटेक्टर, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का आपका फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ का रिलेशन एंड वेवलेंथ, किस वेवलेंथ में क्या काम करना है। अगर थर्मल इमेजर है, रात को देखना है मुझे, थर्मल इमेजर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीट डिफरेंस, एमिशन ऑफ हीट। जो दिन में सूरज से पकड़ लिया मैंने, उसको रात को एमिट किया, उसको पकड़ता है। एक आदमी अलग से हीट छोड़ेगा, टेबल अलग से छोड़ेगा, साइकिल अलग से छोड़ेगा, वो डिटेक्टर 10 किलोमीटर दूर से पहचानना है, करेक्ट। सो थर्मल इमेजर अभी कितना दूर से पकड़ सकता हूं, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी इन व्हिच माय डिटेक्टर इज वर्किंग। कंप्लीट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में 2 विंडो है, 3 to 5 माइक्रोमीटर एंड 8 to 12 माइक्रोमीटर विंडो। ये दोनों माइक्रोमीटर वेवलेंथ में जो एमिशन है वो सबसे दूर में जाता है, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस से बर्बाद नहीं होते हैं। सो देयरफॉर जितने भी दुनिया में नाइट विजन डिवाइस है, उसका जो डिटेक्टर है वो काम करता है या तो 3 to 5 माइक्रोमीटर या तो 8 to 12 माइक्रोमीटर वेवलेंथ में। ये मैं किस लिए बता रहा हूं? मेरा नॉलेज नहीं दिखा रहा हूं, ये आपको बता रहा हूं किस तरफ से आपका जो बेसिक साइंस है वो कैसे जाके इंप्लीमेंट होके कोई एक इक्विपमेंट को बनाता है। अगर इसमें किसी को इंटरेस्ट है, प्लीज आप दुनिया को हासिल कर सकते हो, दुनिया को हासिल कर सकते हो। और अभी जो मैंने बताया ये डिटेक्टर हीट सिग्नेचर को पकड़ने के, उसको कंटिन्यूअस कूलिंग चाहिए, माइनस टेम्परेचर में काम करना चाहिए। इसीलिए उस डिवाइस को मुझे नाइट्रोजन फिलअप करना पड़ता है बार बार, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन कूल्ड सेंसर, लेकिन उसके वजह से वो हैवी हो जाता है। तो मैं रात को जब पेट्रोलिंग करके नाइट विजन लेके जा रहा हूं, 5 किलो का सामान लेके जा रहा हूं। सो द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया है जिसको नाइट्रोजन कूलिंग की जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनकूल्ड सेंसर। इसके आगे तो सोचते जाइए, देयर इज नो लिमिट।
दैट साइंस हैज टू वर्क एंड फाइंड फॉर अस। हम तो यूजर हैं। सो देयरफॉर अगर आप डायरेक्ट वर्दी नहीं पहन सकते हो, आप ये सब में घुसिए, आप ड्रोन में काम कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाइए, क्वांटम कंप्यूटिंग में जाइए, क्वांटम मैकेनिक्स में जाइए। बहुत सारे फील्ड हैं जो फाइनली आप फौज को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मेरे जो गन है, अभी वीडियो दिखाया, टैंक है, इट इज सो हाई टेक। जहां पे टैंक भेजा उसको सैटेलाइट सिग्नल पकड़ के अपना लोकेशन पता होना चाहिए। जहां भी उसने बैरल घुमाया उसको कहां मैं देख रहा हूं उसको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं सिग्नल में बता रहा हूं मैं एक टारगेट, लैटिट्यूड 34 डिग्री 43, ये लॉन्गिट्यूड सो एंड सो फायर। गन को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको टारगेट का लोकेशन पता हो गया, उसको खुद का लोकेशन पता होना चाहिए, उसके बाद वो कैलकुलेशन करेगा, वो देखेगा मेरा गोला या मिसाइल एटमॉस्फेयर में कितना ऊपर से जाएगा, उसमें हवा का प्रेशर टेम्परेचर क्या है, उसको कैलकुलेट करेगा ताकि गोला नहीं जाके करेक्ट एक्यूरेट गिरेगा। अभी मेरा जो ये गनर है, आपको लगता है ऐसे खड़ा है, भाई साहब सॉरी, आपका ऑपरेटर है, ही कैन हैंडल द लेटेस्ट रेडियो सेट, राइट। जो मेरा टेक्निकल असिस्टेंट है, यू गिव हिम ए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यहां से 50 किलोमीटर दूर, वो मेरे को तुरंत निकाल देगा मेरे को किस गन को कहां पे क्या फिटिंग करके क्या फायर करना है। मैं जब 15-25 किलोमीटर में फायर करूंगा, 13 किलोमीटर ऊपर जाके नीचे आएगा। तो 13 किलोमीटर में हर एक 2000 मीटर में एटमॉस्फेयर का लेयर चेंज होता है, उसका करेक्शन को लगाना पड़ेगा, उसके बाद उसको मैं फायर करूंगा तब जाके करेक्टली गिरेगा। अगर वो हासिल करना है, लुक एट दैट टेक्निकल असिस्टेंट। तो इट इज नॉट दैट सिर्फ राइफल ना, राइफल तो आजकल आएगा नहीं, सिंदूर में देख लिया, घर में बैठे बैठे लड़ाई हो गया। राइफल का काम सबसे लास्ट में आएगा। टुडे द वर्ल्ड इज डिफरेंट, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग रेंज, मिसाइल, आर्टिलरी, मेरा मैक्सिमम सामने का लड़ाई तो आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो बहुत कम चांसेस है। सो देयरफॉर आप लोगों के लिए बहुत स्कोप है। यही कह रहा हूं, अगर डायरेक्ट वर्दी नहीं भी पहन पाते हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डू टू कंट्रीब्यूट एंड बी पार्ट ऑफ दिस। कंक्लूजन, डिसाइड योर गोल, गिव योर बेस्ट, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एम डिसाइड कर लिया, सोते रह गया, सॉरी। ऑल्टरनेट प्लान जरूरी है। अगर मेन एम हासिल नहीं हुआ, जैसे हम कमांडो पेट्रोल को भी भेजते हैं टास्क देके, अगर मेन टारगेट में नहीं बर्बाद कर पाते हैं, उसको ऑल्टरनेट टास्क जरूर करके आएगा। सो एम भी अपना ऑल्टरनेट रखना जरूरी है। अपना थ्रेट को आइडेंटिफाई करो, मेरा कमजोरी क्या है। हो सकता है घर में मुश्किल है, हो सकता है मेरे मैथ्स में कमजोर हूं, कुछ भी हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करो। जैसे आइडेंटिफाई हो गया, उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। पैसे नहीं है, निकल जाएगा। अभी हाल ही में मेरे ही कैंटोनमेंट में मैंने बोला यहाँ का एनसीसी को कि अगर कोई बच्चे हैं कॉलेज के जो स्कूल के बच्चों को पढ़ाने को तैयार है, शाम को 2 घंटे आना है, महीने में 20,000 मैं दूंगा। तरीका है, लेकिन मन में जज्बा चाहिए, करेक्ट। बाकी हाउ टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस में ये आपको, मेरा लेक्चर एक्चुअली खत्म है, इसलिए मेरा एम था कि बताना कि भाई आपने एम सिलेक्ट कैसे करना है, क्या क्या ऑप्शंस है, किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए मेरे को सिलेक्ट करने के लिए, एंड अगर जब डिसाइड कर लिया उसके बाद आगे मैंने कैसे डिसिप्लिन फॉलो करना है। अगर आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है, सब कुछ है, joinindianarmy.in सब कुछ मिल जाएगा, गूगल करोगे, यूट्यूब में सब कुछ मिल जाएगा। कहने का मतलब आप लोगों के टाइम पे आजकल सब कुछ खबर इंटरनेट में और चैट जीपीटी में अवेलेबल है। सिर्फ एक कमी है कि मुझे वो करना है क्या नहीं। तो अभी मन बना लो मुझे करना क्या है आफ्टर माय लेक्चर, और उसके बाद खुद ही देखो चैट जीपीटी में, कुछ भी पूछो चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी को ये भी पूछो मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड झगड़ा हो रहा है, वो मेरा नहीं सुन रहा है, मुझे करना क्या चाहिए, वो एक पेज का दे देगा, आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, गिफ्ट खरीद दो, फ्लावर दे दो, ये करो, बर्थडे मना लो, सब कुछ है अवेलेबल। उसको करने के बाद ये भी लिखो, आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, व्हाट शुड आई डू, आई एम इन क्लास 11। ये भी देखो, अनुष्का शर्मा कौन सा ड्रेस पहना, विराट कोहली कितना रन बनाया, कितना देखोगे यार। अपने लिए भी सोच लो, अपने लिए भी सोच लो। समझ रहे हैं क्या बता रहा हूं मैं। तो ये जो सोशल मीडिया और जो ये गूगल है, इसको काम के लिए यूज करना है। ये नहीं बोलो बैन करना है, लेकिन उसके लिए माइंड को कंट्रोल करना जरूरी है। मैंने बताया अगर आज मैंने 2 घंटे पढ़ाई करना है, 1.5 घंटे में खत्म कर लिया, तो आधा घंटा आपके पास है, आप जो मर्जी कर सकते हो। लेकिन वो आधा घंटा भी वो करो जो आपको फायदा हो, वो मत करो जो दूसरों को फायदा हो या आपको नुकसान हो।
लर्न टू ड्रीम, वन डे द डे विल बी योर्स। मैंने आपको एक फोटो दिखाया था जिसमें सड़क के किनारे बैठ के मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, मेजर था मैं, और आज मैं यहां पे हूं। अगर मैं सपना नहीं देखता था क्या हो सकता था? अगर मैं मेहनत नहीं करता था क्या हो सकता था? नहीं हो सकता था। सो देयरफॉर मेरा लास्ट कोटेशन यही है, लर्न टू ड्रीम, वन डे द वर्ल्ड विल बी योर्स। ठीक है? अभी आप में से कुछ लोग बोलोगे हमारे पंजाब में तो कितने जनरल साहब है, ये कहां से ब्रिगेडियर साहब आ रहा है, खुद को क्या सोच रहा है? मैडम भी सोच रही है। मेरे देश के लिए मैं काफी हूं। अभी मेरे ऊपर वो किताब लिखना चाहते हैं, मेरे को बार बार फोन कर रहे हैं। मैंने बोला परमिशन ले लो। अभी मैं चुपके से घर जाता हूं क्योंकि वो इतना मीटिंग कर देंगे, वेलकम कर देंगे, मेरा छुट्टी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए चुपके से गया, चुपके से आ गया इस बार। कहने का मतलब मेरे लिए दिस इज गुड एनफ, आपके लिए स्काई इज नॉट द लिमिट यार। इसमें एक फोटो मैंने नहीं दिखाया। हु वॉज द फर्स्ट मैन टू गो टू स्पेस? इंडिया का सबसे पहला कौन स्पेस में गया था? राकेश शर्मा। देखा है आपने? देखा है उनको? देखा है उनको? कहां देखा है? सॉरी, ऑनलाइन फोटो में देखा है। गुड यार, आई मिस्ड इट। आई हैव ए फोटोग्राफ विद हिम, आई मेट हिम पर्सनली बिकॉज ही वॉज विंग कमांडर राकेश शर्मा। और जब वो मिशन में गए, वापस आने के बाद रशिया का हाईएस्ट अवार्ड से उनको नवाजा गया, ये लोगों को नहीं पता है। और इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड अशोक चक्र से भी उनको नवाजा गया। सो ही इज नॉट जस्ट राकेश शर्मा, ही इज विंग कमांडर राकेश शर्मा, अशोक चक्र एंड ऑर्डर ऑफ द सोवियत एम्पायर समथिंग है। और जो सोवियत पायलट था उनको भी अशोक चक्र इंडियन से नवाजा गया। तो ये लोगों को नहीं पता है। एंड आई हैव फोटोग्राफ विद हिम। और अगर ये मैं वर्दी नहीं पहनता तो ऑब्वियसली नहीं होता था। फील्ड मार्शल मानेकशॉ का लेक्चर मैंने सुना हुआ है एज ए इंडिया कैडेट। 90 ईयर्स में आए तो उनको स्टेज में चढ़ने के लिए हमने हाथ पकड़ा, डोंट होल्ड मी सन, आई कैन गो अप माई सेल्फ, ऐसे करता है। और उनका जो लेक्चर सुना मैंने, वो मेरा दिल में रह गया। प्लीज सेट। तो ये वर्दी के वजह से जिंदगी में ऐसा कुछ करने को मिलता है जो कि बाकी जगह नहीं मिलता है। और बाकी अभी नेवी के बारे में नहीं बोलूंगा तो मैं तो आज तो मुझे यहां से वो कर देंगे। आर्मी में हूं, लेकिन नेवी का काफी बार मैंने शिप में जाने को मौका मिला है। एनडीए में भी हमें शिप में डे आउट इन द सी बोलता है नेवी वाला। लेकिन बता रहा हूं, आधे हम एनडीए में इतना रोलिंग करता है, इतना रोलिंग कराता है डिनर के बाद, हमें उल्टी तो आना बंद हो जाता है। शुरू में बहुत आता है, बाद में बंद हो जाता है। लेकिन शिप में गए 6 सेमेस्टर में आधे घंटे में आधा जनता उल्टी कर रहे थे। वही तब हमने सीखा शिप में 3 मोशन होता है, रोलिंग, पिचिंग, 3 मोशन में ऐसे ऐसे घूम पेट में जो भी है। और सबसे पहले इन्होंने अच्छा ब्रेकफास्ट खिला लिया नेवी वालों ने, खाना बहुत अच्छा होता है इनका। CHD में जो फॉरेन लड़कियां एक टाइम हमारे टाइम बोलते थे, इफ यू वांट फॉरेन गुड्स, फॉरेन ट्रेवल, मेरी नेवी गाय। इफ यू वांट कम्स बैक एवरी डे होम, मेरी एयरफोर्स गाय। इफ यू वांट लॉट ऑफ एडवेंचर, डोंट माइंड 3 इयर्स ऑफ सेपरेशन, मेरी नावी गाय। ठीक है, तो इस तरफ से बोलते थे। तो नेवी का चार्म अलग ही, व्हाइट ड्रेस, रॉयल वाला। अभी मुझे मेरा दोस्त है नेवल ड्रेस, तलवार लेके आते थे, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये सर फिलिप चैटूट है या सर इंद्रजीत तालुकदार है, बिकॉज सर स्मार्ट दिखता है कि नहीं? ओके, तो कहीं भी जाते हैं। सो नेवी इज वेरी गुड, कोई शक नहीं है। लेकिन आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, मुझे नहीं पता था पंजाब में इतना नेवल कैडेट है। क्योंकि एनडीए में देखा था तकरीबन साउथ इंडिया के और केरला के जो मेरे साथ वाले, वो नेवल ऑप्ट करते हैं क्योंकि बोलते हैं होम पोस्टिंग ज्यादा मिलता है। और मेरे नेवी वाले साथ में है। पोस्टिंग देखो, कोचिन गोवा मुंबई, मुंबई कोचिन गोवा, कोचिन गोवा मुंबई, मुंबई कोचिन गोवा। एक बार फ्रांस, एक बार जापान, बीच बीच में। तो बढ़िया है नेवी। और एक सबमरीन वाला है, पानी से ऊपर बाहर आता ही नहीं है वो सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन में घूमते रहते हैं, पता नहीं कहां है। सो नेवी का लाइफ अलग है। और जो मार्कोस है, एनडीए में स्विमिंग का उस्ताद मेरा नेवी का था, ऐसे उस्ताद जैसा। वो पता नहीं पानी के अंदर ऐसे आवाज करता था, टुम टुम आवाज करता था। हम बड़े डरते थे कैडेट। हम उसने नाम लिखा था उठ बिलाओ, वो पानी वाला, क्योंकि वो आके अगर स्विमिंग कैडेट नहीं किया वो दबा देता था पानी के अंदर। जो डरता था, जो स्विमिंग नहीं आता था, दबा के। लेकिन सिखाया जरूर। वो 10 मीटर से जाम करना 4th सेमेस्टर का टेस्ट होता है। वो फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्फिडेंस दे दिया, भाई 10 मीटर के उससे भी ऊपर आ तो जंप कर देंगे। बड़े अच्छे होते हैं पानी में, क्योंकि उनको ट्रेनिंग में शिप टू शिप, सबमरीन टू शिप, एवरीथिंग दे आर ट्रेन्ड, दे आर एक्सपर्ट पानी में। और अंडमान पोस्टिंग देखो इनका, अंडमान तो भूल ही गया मैं, अंडमान है ना, वाइजैक में, वाइजैक आई हैव टेकन दैट शिप,
वाइजैक से वापस आओ तो वाह, उनका कॉलोनी देखो पहाड़ के ऊपर ग्रीन के बीच में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ब्यूटीफुल नेवी लाइफ। पानी जिसको पसंद है, लेकिन जिसको पहाड़ पसंद है, ठीक है। लास्ट मेरा आज एक पॉइंट है, अभी ये मैं गुरु दक्षिणा मांगने वाला हूं आपसे, सीओ साहब से और बाकियों से। तो अभी क्या है लेटेस्ट, अभी भी आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इंक्लूडिंग डायरेक्टर मैम एंड प्रिंसिपल मैम। अभी क्या है, एक नया डोमेन है। पहले लड़ाई लड़े जाते थे लैंड, सी एंड द एयर, 3 डोमेन ऑफ वॉरफेयर। बीच में शुरू हो गया स्पेस, फिर 5th डोमेन आ गया साइबर, 6th डोमेन अभी आ गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और 7th डोमेन आ गया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। सो फर्स्ट 3 डोमेन सबको पता है, स्पेस सबको पता है, साइबर अटैक आएगा, रेलवे नेटवर्क खराब, आपका एयरपोर्ट का नेटवर्क खराब, मेट्रो नहीं काम करेगा, जहां भी ऑटोमेशन है बिजली का सब कुछ खत्म हो सकता है। आपका डैम का प्रॉब्लम हो सकता है अगर ऑटोमेटेड सिस्टम है, अगर साइबर। इसके अलावा नया 2 डोमेन है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, मैंने जो बोला फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, कोई भी ड्रोन उसको कोई भी मिसाइल आए उसको जैम कर दो, कोई सैटेलाइट है उसका लिंक को बर्बाद कर दो, इसको बोलता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। कोई रेडियो सेट से कम्युनिकेशन कर रहा है उसको जैम कर दो, इसको बोलता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। ये एक नया डोमेन है, तो इसके लिए भी लॉट ऑफ स्टडीज आर गोइंग ऑन। अभी ड्रोन हमारे पास आए थे, एक तो हमारा एडी गनर ने बहुत अच्छा काम किया, सबको पता है, एक बार तालियां हो जाना चाहिए, करेक्ट। जितने भी ड्रोन आए उनको मार के गिराया। लेकिन अगर किसी ने न्यूज में पढ़ा होगा, डीआरडीओ ने एक नया सिस्टम बनाया कि अपना एक रे डाल के उसको जला देते हैं और गिरा देते हैं। इसी तरफ हम अभी गन बना रहे हैं जो कि ड्रोन को फ्रीक्वेंसी को जैम करके गिरा सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, ये सिर्फ आपका जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन लास्ट डोमेन जो है जिसमें आप और मैं सब लोग कंट्रीब्यूट करना है वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अभी इजराइल ईरान में लड़ाई हो रहा है, अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, अभी एक्चुअल खबर क्या है किसी को नहीं पता है। क्या उन्होंने हमारा राफेल गिराया था, नहीं गिराया था, नहीं पता है, ये तो बड़े होंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में डिसइंफॉर्मेशन बहुत होने का अंदेजा होता है, रूमर्स फैलने का बहुत खतरा होता है, लोग बोलने का भारतीय फौज हार गया। आई एम टेलिंग यू, तो पहले जमाने में जब 1962 चाइना के साथ लड़ाई हुआ था, एक सेला पास बोल के है, किसी ने गया है, तो सेला पास इतनी ऊंचाई है, वहां तो चाइना नहीं आ सकता था, लेकिन अपने जवानों को किसी ने बोल दिया हम हार गए, यहां से छोड़ के भाग जाओ, तो सभी भाग के भूटान भाग गए, तो सेला पास चाइना ने ले लिया। तो वो एक रूमर, वो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। तो आज के जमाने में कैसे हो रहा है ये सोशल मीडिया में हो रहा है और मीडिया में हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज से हमने लड़ाई करना बहुत जरूरी है। जैसे मेरा ये जवान है, ये छुट्टी गया है, यहाँ लड़ाई शुरू हो गया है, वो ट्रेन पकड़ने वाला था, उसको फेसबुक में दिख गया कि भाई पठानकोट पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया, तो उसका मन में क्या चलेगा, क्या मैं जाऊं यूनिट में या मैं ट्रेन छोड़ के वापस चले जाऊं। सो देयरफॉर ये बहुत जरूरी है। अभी ये भी एक है जिसको हमने लड़ना है। तो ये लड़ने के लिए हमने क्या किया है, अभी इंडियन आर्मी ने हर एक फॉर्मेशन कोर हेडक्वार्टर एंड अबोव में हमने अपना अकाउंट खोला है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर। हमको सिर्फ ट्विटर अलाउड है, फेसबुक इंस्टाग्राम बाकी लोगों के लिए। इसमें हम जो असली खबर है टाइम टू टाइम वो हम पब्लिश करते हैं। प्लस अपने भी मन में अभी पठानकोट वाले भी सोचेंगे कि यार हमारे फौज के पास तो ड्रोन को मारने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन वो पहला वाला वीडियो मैंने जो दिखाया था वो अभी इसमें आने वाले हैं 2-3 दिन में। तो इस तरफ का हम वीडियो डालते हैं, हम जो ऑफिशियल अकाउंट है, इस तरफ से हम दिखाते हैं कि हम किस तरफ से तैयार हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं, ये दुश्मन को भी बताने के लिए कि भाई बेटा मत आओ, हम तैयार हैं। तो ये है हमारा एक नया इस चीज़ को टैकल करने का। जैसे प्रताप वर्ल्ड स्कूल का बहुत बढ़िया, मैं देखता हूँ कभी कभी पोस्ट, उनका पेरेंट्स से इंटरव्यू लेते हैं, पुराने स्टूडेंट से इंटरव्यू लेते हैं, तो इससे पता लगता है स्कूल कितना अच्छा है, विश्वास हो जाता है, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग। सिमिलरली अगर आप नहीं देखोगे भारतीय फौज के पास क्या ताकत है तो आप नहीं बिलीव करोगे। तो इसीलिए ये जरूरी है, ये जो है ये नया डोमेन को आप लोगों ने सपोर्ट करने का। तो इसीलिए मैं अभी क्या करूंगा, हमारा जो अकाउंट है स्पेशली इधर हम जो है यहाँ के मामून में है, और इधर पे सांबा से इधर तक जो है वो हमारा जीओसी साहब के अंदर है, इसी तरफ जम्मू के जीओसी साहब, ये दोनों जो है पूरा योल के अंदर आते हैं, जो कि हम बोलते हैं राइजिंग स्टार कोर बोलता है।
राइजिंग स्टार कोर के अंदर हम है, जो कि हमारा कोर कमांडर साहब है, कभी कभी आते हैं यहाँ पे एक्स सर्विसमैन से मिलने, तो उनका अकाउंट है, हमारा नहीं है, नीचे वालों का, उनका अकाउंट है, उनका अकाउंट में हम भेजते हैं, वहाँ से पोस्ट करते हैं। तो अभी वो नया अकाउंट खुला है, लेकिन मेरा टास्क मिला है, क्योंकि इस फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ, पिछले 3 साल में मैं इसी डोमेन में काम कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। तो मेरे को टास्क दिया है कि इसमें फॉलोअरशिप को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखना चाहिए। तमाम पठानकोट, सांबा और इधर के लोग जो है, स्टूडेंट से लेके जो भी है, सब लोग इस अकाउंट को फॉलो करने से आप लोग को एक तो पता लगेगा, दूसरा कभी अगर ऐसा फिर से ऐसा नौबत आ जाए जब मैं पब्लिक को कुछ बताना चाहता हूं, मैं इसमें पोस्ट करूंगा। मैं ये चीज़ कर रहा था, सिक्किम में पोस्टेड था 2023 में, नॉर्थ सिक्किम में फ्लड आके 1800 टूरिस्ट फंस गए थे। तो मेरा यही एक जरिया था उनके घर वालों से कम्युनिकेट करना कि ये लोग सेफ है, क्योंकि वहाँ का मोबाइल कनेक्शन आउट हो गया था। मैंने क्या क्या ग्राउंड में मेरे जवान भेजा, जहाँ जहाँ होटल में फंसा हुआ था, होम स्टे में फंसा हुआ था, सबका फोटो खींच के लाया, उनका वीडियो बना के लाया और मेरे पास आया। तो मैंने इसमें पोस्ट किया, यूट्यूब में पोस्ट किया और पूरा चैनल को, मीडिया को दे दिया, बोला भाई अपने घर वालों को पहचानो और देखो कि सब सेफ है, नहीं तो। और मेरे पास 3 दिन में, और मेरा नंबर भी दे दिया, अभी भी गूगल करके देख लो, सिक्किम फ्लड आर्मी हेल्पलाइन, मेरा नंबर आ जाएगा 9906200205। अभी लास्ट वीक में फ्लड हुआ था, फिर मेरे पास कॉल आ रहा था, क्योंकि वो गूगल में है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 1800 टूरिस्ट को, उसमें 62 बांग्लादेशी थे, कोई थाईलैंड के थे, अमेरिकन थे, सबको, उनको एम्बेसी को बता पाया कि आपके लोग सेफ हैं। सो ये सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है। कल को ड्रोन अटैक आ गया, साइबर अटैक आ गया, मामून अलग हो गया, पठानकोट शहर अलग हो गया, आप लोग घर में बैठे हो, आपके पास इंटरनेट है, यही एक जरिया होगा जिसमें मैं आपको कुछ मैसेज पास कर पाऊंगा। अभी पठानकोट के डीसी साहब मेरे साथ रोज बैठ रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं कौन कौन सा गांव में बंकर बनाना चाहिए आप लोग बचने के लिए, पठानकोट के लोगों को अगर हवाई हमला होता है, वो बंकर कहाँ होगा, उसमें भागने के लिए हुक्म कब मिलेगा, हम आपको कैसे बताएंगे, सायरन बजाएंगे, क्या बोलेंगे, एवरीथिंग हम इसमें पास कर पाएंगे। क्योंकि बाकी जगह पे आएगा, विश्वास नहीं करना है, वो रिमर्स हो सकता है, वो दुश्मन का कार्रवाई हो सकता है, लेकिन जो ऑफिशियल हैंडल में आएगा वो करेक्ट न्यूज़ होगा। समझ में आ रही क्या बता रहा हूँ मैं? सो देयरफॉर मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सब में से, सीओ साहब से और स्टूडेंट से बता चुका हूँ, मैडम से भी बता रहा हूँ, मेरे को एक्चुअली ये मेरे लिए पर्सनल हेल्प होगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ। तो मेरा कोर कमांडर साहब मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है मेरा फॉलोअरशिप को बढ़ाने का। ये कोई बिजनेस के लिए, किसी के लिए नहीं, ये मैंने बता दिया इरादा क्या है। उनका इरादा क्या है कि यहाँ के लोकल लोगों के साथ, मीडिया के साथ हम बिल्कुल एक जरिया है जिससे हम कम्युनिकेट कर पाए। सबका नंबर नहीं ले सकते हम, और कहीं नंबर का विश्वास भी नहीं करोगे, करेक्ट? तो देयरफॉर ये ऑफिशियल मीडिया है जिसका मैं अभी क्या करूंगा, इसका लिंक, और मेरे को जो टाइम दिया है 25 तारीख को मैंने बढ़ाना है कम से कम 5000 फॉलोअर, मेरे लिए टारगेट है। जैसे टारगेट होता है ना, टारगेट, वैसे एयरफोर्स ने बहुत अच्छा एडवर्टाइज निकाला है, देखा है किसी ने? एयरफोर्स ने एडवर्टाइज निकाला है, ज्वाइन एयरफोर्स। बाकी जॉब में आपको टारगेट मीट करने बताता है, एयरफोर्स में आपको टारगेट को बर्बाद करने बताया जाएगा। बढ़िया एडवर्टाइज निकाला है, कल ही देखा है मैंने, करेक्ट? ये आर्मी भी कोई भी यूज कर सकता है, नेवी भी यूज कर सकता है, बट गुड थिंकिंग। बट देन इस हालत में मैं भी टारगेट सेट किया हूं, मुझे 25 तारीख को 10 बजे के बाद शाम तक 5000 फॉलोअर बढ़ाना है। अभी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि आज कोई और का टास्क है, तो उस दिन मैं लिंक शेयर करूंगा, जो भी शायद वीडियो दिखाए वो आएगा, या कोई अच्छा वीडियो आएगा उसको शेयर करूंगा। डायरेक्टर मैम एंड प्रिंसिपल आप लोग को भी मैं शेयर करूंगा। रिक्वेस्ट इन केस, मुझे उम्मीद है कि आप लोग 500 लोग हो, घर में 3 लोग हैं, 1500, 2000 फॉलोअर तो मुझे इस हॉल में मिल जाएगा। इट विल हेल्प मी, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ओके, जब एक पायलट, फाइटर पायलट ऊपर जाता है ना 30,000 फीट, उसको टास्क मिलता है एक बॉम्ब गिराने का। अभी वो बॉम्ब दूर से गिरा के आ जाए या नजदीक से यकीन करके गिराए, वो उसने डिसाइड करना है, उसको कोई देखने के लिए नहीं है। इससे ये है कि आप लोग तब मेहनत तो प्रिंसिपल मैडम देख, पापा देख रहा है, टीचर देख रहा है, मेहनत करना है, लेकिन तब ज्यादा जरूरी है जब आपको कोई नहीं देख रहे हो, फिर भी आप दिल से मेहनत कर रहे हो, दैट इज द राइट थिंग। सो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। आप फुटबॉल जीत के आओ, मैं 10 दिन छुट्टी दे दूंगा, ये जवान के लिए ठीक है। सूबेदार साहब को तो बोलूंगा साहब फुटबॉल जीत के आओ, वॉलीबॉल में भी आप ही को लगा दूंगा, छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन साहब बोलेगा गुड साहब, मेरे को सीओ साहब बहुत भरोसा करते हैं। ये है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। मैं एक काम करता हूं क्योंकि यही मेरा ड्यूटी है,
मैं ये करता हूँ क्योंकि यही करेक्ट समझना है। आज मैं यहाँ पे लेक्चर लेने आया हूँ, क्या मुझे कुछ मिलेगा? देयर इज नो ट्रांजैक्शन बिटवीन मी एंड द स्कूल, बट इट्स पार्ट ऑफ माई ट्रांसफॉर्मेशनल वे, क्योंकि मुझे लगता है इस वक्त पे मुझे लाइफ में मुझे यही करना चाहिए, सोसाइटी में मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन को मुझे पनाह देना चाहिए, और अगर किसी को इससे भला हो जाए इट विल बी गुड फॉर द कंट्री। सो दैट इज़ माई वे ऑफ थिंकिंग ट्रांसफॉर्मेशनल। नहीं तो आज के ज़माने में यूट्यूबर को बोलो मेरा एक कवर कर दो, वो भी बोलेगा मेरे को पैसा क्या मिलेगा। सो द वर्ल्ड इज मटेरियलिस्टिक, सो यू हैव टू डिसाइड ट्रांजेक्शनल फॉलो करना है, ट्रांसफॉर्मेशनल। लुक फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल। अगर ये करोगे आप कभी गलत नहीं जाओगे। मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मोबाइल नहीं देख रही हूँ, नॉट बिकॉज मेरा फादर नहीं है घर पे, बिकॉज मुझे यही करना है। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल वे ऑफ थिंकिंग। वो करो जो मुझे करना उचित है। दैट्स इट, आई फिनिश, थैंक यू। Thank you so much, sir, for such an insightful, thought-provoking and motivational session delivered by you. I strongly believe this session is going to be life-changing for many of us. We are really inspired by your session, sir. You have touched our heart and mind. I request Director Oshin ma'am and Principal Subrarani ma'am to present a painting to Brigadier A.K. Basumatari as a token of memory. To call on stage Commander N. Nishant, Commanding Officer to Punjab. Stage Commander N. Nishant, Punjab, Commanding Officer to Punjab Naval Unit, Amritsar, to extend his gratitude by presenting a memento to Brigadier A.K. Basumatari, Commander 29. Good afternoon, everyone. How did you guys enjoy? Sir had specially taken out time, and when I told him कि sir there are 500 NCC cadets who are here who would love to hear you, sir's changed. Like I said, every time sir is a like you have been told is a brigade commander holding a बहुत important काम है सर की एक इनफैक्ट देयर वाज अ मीटिंग ऑल्सो जो आप लोगों के लिए उन्होंने टाइमिंग चेंज किया है कि आपसे आके मिले। आई होप यू ऑल हर्ड जो भी बताया, तो जो जो उन्होंने बताया है आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? सो यू विल मेक अ प्लेज टू हिम कि सर जो जो आपने बताया हमें हम उनको फॉलो करेंगे, ओके? श्योर?
We will all remember the day in our life. Thank you very much. Now I would like to invite the cadets for the NCC song. जब वो स्कूल में थे तो सर ने बहुत सालों बाद ही said कि he is going to join you and he'll also try to sing the NCC song with you. ठीक है? तो आप लोग सारे जो स्टेज में हैं और आज सर हैं तो ऐसा नहीं है कि जो स्टेज में है वही गाएंगे, ठीक है? जिन जिन को सॉन्ग आता है आई वांट यहाँ से लेके जो सर का ऑफिस है यहाँ से एटलीस्ट 5
लेक्चर का कुछ भी सुनाई दिया? एक घंटा बैठा रहा गर्मी में, वो भी एक जिंदगी का एक ब्रेक, कहीं ना कहीं काम आएगा, बताओ। ओके? ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके बात करके, और थैंक यू जिसने मेरे को मेरा ऊपर कमा दिया, कम कर दिया है। तो मैं अभी अगली बार दौड़ूंगा तो 35 वाला स्पीड चलाऊंगा। ओके? एनसीसी का व्हाट्सएप ग्रुप भी खोल दिया है। कभी भी इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह आते हैं, हम एनसीसी भर्ती के लिए, सी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए हम उसमें डाल देते हैं। एंड सिमिलरली सोशल मीडिया तो मैंने बता ही दिया। 25 तारीख को 10 बजे के बाद गुरु दक्षिणा चाहिए मुझे, मिलेगा? ग्रेट। सो वेरी वो ठीक है, दैट इज जस्ट एम प्लस, बट मेन इरादा है आई विल बी वेरी हैप्पी। कुछ साल बाद आप बताओगे कि सर जब मैं बुढ़ा होऊंगा ऐसे ऐसे करके ना, मेरी एरिया में पोस्टेड होकर बोलोगे सर मैं अभी यहाँ का लोकल यूनिट का सीओ हूँ और आपका एक लेक्चर सुना था मैंने, और मैंने ऐसे ही लेक्चर 2012 में सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर में लिया था। और अभी मैं जब माओ में इंस्ट्रक्टर था तो मेरा एक स्टूडेंट मेजर का वाइफ मिला, तो मैंने पूछा मैम आप कहाँ से हो? बोली जैसलमेर से। तो मैंने उनको जैसलमेर के बारे में बोलना लगा। कहता सर मैं अजमेर में पढ़ाई किया हूँ। मैंने बोला आप कहाँ से पढ़े हो? सोफिया कॉलेज में तो नहीं? वो बोली हाँ मैं सोफिया कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बोला 2012 में तो नहीं पढ़ा था? बोला हाँ मैं वहीं पे थी। मैंने बोला उस टाइम पे कोई मेजर साहब तो नहीं आया था? बोला था हाँ सर आया था। मैं बोला मैं ही वो मेजर साहब। सो लाइफ इज वर्ल्ड स्मॉल, वर्ल्ड इज स्मॉल, तो कोई ना कोई मतलब कहीं भी रहोगे गुरु दक्षिणा लेने मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है? पर उससे पहले अर्जुन भी बनो। थैंक यू।